By the end of today's class, we will be able to analyze and shortlist good mutual funds. And this class would be more than sufficient. I have tried to, inculcate all the things, and I'll try to finish it up in this class itself. My name is Pranay Vyas. I am an engineer. I do have masters in finance and economics, and I do have 9+ years of experience into training itself, training of finance and investment banking. So let's start straight away from the mutual funds. How to find a good mutual fund. So in the previous class, what exactly happened? We were discussing the ways to invest in mutual fund, and there was a shortage of time. So we are going to continue from the same thing today. I hope my screen is visible to everybody, right? So guys, let's start this session in a way how we can put money, how we can invest money in mutual funds, and how we can make best use of these tools, right? And then we are going to see the websites, and we are going to analyze and shortlist the mutual funds from various types of mutual funds, right? Now, starting from SIP, you might have heard this thing multiple times. SIP is systematic investment plan, where you invest your money, in intervals, means every month. It's just like recurring deposit, guys. Just a minute, let me open the chat itself. All right, so it is just like recurring deposit, means for example, you will fix some amount and every month that amount will get deducted from a bank account. And SIP is a good tool to invest, right? Now let's see how SIP works. We have a calculator today, so I thought instead of Excel sheet, I will show you in the calculator itself, guys. So this is SIP calculator, and since you all are students, and if you start investing 1000 rupee per month, guys, before I proceed further, I would like to say anything which is taught in the class is for educational purposes. Any company I am referring to, any advice I am giving you should not be considered as investment advice. It will be for educational purposes only and only. All right, so let's see. If I invest, being a student, 1000 rupee, right, at the rate of 15%, because mutual fund generally give you 15% returns. And let's you are in your 20s maybe, so let's keep it 20 years only. So for next 20 years, if you're investing 1000 rupee, right, so the total amount that will be inculcated, that will be collected, right, the corpus would become 2,40,000. But because of compounding for this 20 years, guys, the total amount that you will be collecting in your corpus would be 13 lakh rupee, just by investing 1000 rupee. 1000 rupee के तो पिज़्ज़ा ही खा जाते हैं आजकल. So if I increase this amount, see guys, in compounding there are two very important parameters that will come into play. How much amount you are investing over here, and for how much period you are investing. If this amount is quite heavy, your returns would be great. If this time horizon is very long, even then your your outcome would be really great. The main important criteria over here is how much you are investing and for how long you are investing. And mutual fund is a long term thing. Never ever do trading, or you can say buy swing trade. I would say buy today, sell tomorrow kind of things in mutual fund, because there is brokerage, there expense ratio, there's capital gain taxes as well. So it should be more than at least 7 years, guys. It should be more than that, 5 to 7 minimum, because it should not be like that you are investing for 1 year, 2 years, and then again withdrawing, again investing. That is really not advisable. It is a long term tool. Now if I increase my investment to 2000 rupee per month for next 20 years, maybe you are in your 20s right now, next 20 means you will be in your 40s. So just by investing 2000 rupee a month, you will be making 26 lakh rupees, guys. अगर हम 15% के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड को लेके चलते हैं, समटाइम्स म्यूचुअल फंड ऑल्सो टचेज 18%, 20% एज वेल. So if it touches 18%, then you will be making around 38 lakhs, just approx to 40 lakh rupee, guys. It is a good amount, if I say. So again, make it 15% only. And now let's make it at just 5000 rupee. Means if someone is able to invest 5000 rupee per month, so that person will be able to make the corpus of 66 lakh rupee, guys. It is a good amount if you start as early as possible, so it is more beneficial. So this is called as SIP, systematic investment plan. Yes, Josh, please ask the doubt.
Guys, if you have any doubts, you please text. I will be reading the text. Yes, Arjun, please. 12% 50 roughly. हाँ, आई विल बी लेटिंग यू नो द रीज़न अर्जुन, मैं वो बताऊँ आपको क्यों ऐसा रहता है. बट सी वट हैपन्स, 15% ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं. वी टेक इट 15%, इट टचेज 18%, सम ऑल्सो टचेज 22, 23, 25% एज वेल. But on an average, 15% is a very strict number. I'm saying you means if everything is not according to the plan, markets are not doing that good, right? Then 15% anyhow आपको मिल ही जाएगा. But if markets are very lenient, everything is going up to the plan, more than 18% you can expect, right? I'm coming to that. Now there are two types of there is a type of SIP as well, step up SIP. Step up SIP means आज आपने 1,000 रुपये से शुरू किया, you started from 1,000 रुपी today. For next 6 months you will be paying 1,000 every month. पर जैसे ही आपका 6 month complete होगा, the day when you will be completing your 6 month, 100 रुपी extra will be deducted from your account automatically. So अब से आपकी SIP हो जाएगी 1,100. Then again after 6 months, completion of the 6 months, 100 rupee more will be added to this. Similarly, it will keep on adding. That is why we are saying it is step up. It is increasing. That amount you can fix, right? You have a great day. I saw slides before. Which time should ideally have, but not possible to keep longer time frame. Just इस पे ये रहता है, why I'm saying for long period of time, you will be in, you are not doing mutual fund for the sake of growing your corpus in a big way. उसके लिए तो stock market directly आप invest कर सकते हैं. You can invest directly in the stock market. This is something extra. You should invest the money, the SIP, आप कितनी SIP लगानी चाहिए, which you can forget, which you should, it should not be a baggage on your head. You should have a good night's sleep after investing in mutual fund. That's why we are hiring somebody to do these investments, that is fund manager. तो यहाँ पे उतना ही पैसा लगाओ जिसको आपको दुख ना हो बाद में. It should be just like that कि यार डाल दिया, and something you have extra, right? All right. Now what is STP? Guys, listen to me. Why I had made these two arrows as well? I want you to think, because we are going to use all these three together, right? आप इसको पहले ध्यान से समझ लो. Try, just listen to this carefully. Then comes systematic transfer plan. See what happens guys, in CFA and in your curriculum as well, in your MBA curriculum, practical नहीं पढ़ाते, वो लोग आपको theoretical पढ़ाएंगे, means it will be quite conceptual. But CFA करते करते, MBA करते करते आपके 4-5 साल लग जाते हैं CAT की तैयारी, MBA की तैयारी, and it really consumes your time. Advice is that, the best practical way of doing thing is that पहले practical aspect सीख लो, ताकि when you are learning your CFA curriculum or your MBA, you can connect the dots and you can start investing by yourself. So that would be much better approach instead of going long run and then you start learning the practicals, right? Now STP, systematic transfer plan, means something is getting transferred over here. अब यहाँ पे हुआ क्या? Just listen to this. आपने SIP की, you did SIP and you did SIP for 20 years and you collected 66 lakh rupee corpus. ठीक है, this is collected now. Now you are saying, you are thinking कि यार ये ठीक हो गया, ये मैंने SIP चलाई थी, नाउ आई नीड टू ट्रांसफ़र दिस मनी टू सम अनदर म्यूचुअल फंड. मुझे यही पैसा बाहर नहीं निकालना. यू डोंट वांट टू रिडीम दिस मनी, यू जस्ट वांट टू ट्रांसफ़र दिस मनी टू सम अनदर म्यूचुअल फंड, अनदर AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द सेम, इट कुड बी फ्रॉम ICICI, तो आप ICICI के म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो. इफ़ इट इज़ फॉर SBI, देन यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी टू एनी अदर SBI म्यूचुअल फंड. सो द AMC शुड बी सेम, राइट? Now the thing is that why it is done. पहला रीज़न ये रहता है, अगर मैं 66 लाख रुपी एकदम विड्रॉ कर लूँ, इफ़ आई जस्ट स्ट्रेट अवे विड्रॉ, तो लॉन्ग रन कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, शॉर्ट रन में लगेगा. वाई? जो लास्ट की सिप्स होंगी उसमें तो शॉर्ट रन कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. नाउ द थिंग इज़ दैट इंस्टेड कि एक बहुत बड़ा टैक्स आप पे करें, इंस्टेड ऑफ पेइंग सच अ ह्यूज टैक्स स्ट्रेट अवे विड्रॉइंग दिस, you just transfer it in installments. I'm not saying transfer the complete amount. Transfer this money in installments, means 1 lakh rupee every month, 50,000 maybe, or maybe 2 lakh rupee every month, that you will be deciding. So in systematic transfer plan, what exactly happens? You transfer the corpus to some other mutual fund. And why this is happening and why it will be very beneficial, because एक तो आपको टैक्स तो चलो देना ही पड़ेगा, बट टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा, द टैक्स अमाउंट विल बी लेस ओवर हेयर. सेकेंड थिंग,
फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, व्हेन द NAVs आर हाई, जब मार्केट बहुत ऊपर होती है ना, व्हेन एवर द मार्केट्स आर एट द पीक, तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज आपको कम यूनिट्स मिलते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट. म्यूचुअल फंड में तभी पैसा डालो, इफ़ यू आर पुटिंग लमसम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, यू शुड इन्वेस्ट ओनली व्हेन द मार्केट्स आर लो, ताकि आपको यू गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट. सो यू वेट फॉर दैट टाइम. वो वेट करने के लिए आप STP का यूज़ करते हो. पैसा आपका यहाँ रहेगा, 66 लाख रुपये स्टिल हेयर इन अ म्यूचुअल फंड. आपने थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र करना शुरू किया, इट विल सेव टैक्स. सेकेंडली, जब तक मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, अनटिल अनलेस मार्केट करेक्ट्स इटसेल्फ, योर मनी, यू विल बी अर्निंग मनी फ्रॉम हेयर, एंड वंस द मार्केट हैव करेक्टेड इटसेल्फ, आपका पैसा धीरे धीरे यहाँ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड. दैट इज़ वाई STP इज़ यूज्ड. सो व्हाट पीपल डू जनरली, या टैक्सेशन बेनिफिट रहता है बट नॉट कि बिल्कुल ज़ीरो टैक्स होता है, बिकॉज गाइज अब तो गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्सेस डाल दिए हैं, दे आर डिविडेंड टैक्सेस एज वेल. तो टैक्सेस तो आप भूल जाओ, मीन दे आर नो वेज कि नाउ डेज यू कैन सेव योर टैक्सेस. पहले तो आपको डिविडेंड में देर यूज टू बी नो टैक्स. मैनी ईयर्स बैक कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता था, बट नाउ एवरीवेयर देयर आर टैक्सेस. सो टैक्स पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, बट आई होप यू विल बी सेविंग सम टैक्स ओवर हेयर, एंड योर मनी विल बी ट्रांसफर्ड विदाउट रिडीमिंग इट. आप उसको बाहर निकालोगे फिर डालोगे, यू आर स्ट्रेट अवे ट्रांसफरिंग इट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. हाँ, कैन बी सेव्ड, एंड टैक्स प्लानिंग इज वेरी गुड. या एब्सोल्यूट टैक्स कैन बी सेव्ड बाय डैट. बट द थिंग इज डैट गाइज, टैक्स कैन बी सेव्ड, बट अभी कोई ऐसी चीज़ रही नहीं है जो गवर्नमेंट की नज़र से दूर है. आई बिलीव एंड आई थिंक इन ऑल द एसेट्स गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टच अप टू 30%. धीरे धीरे 30% आने वाला है सारे ही एसेट्स में. नाउ लेट्स सी हाउ इट एंड व्हेन गवर्नमेंट डज दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग गाइज, दैट इज SWP, सिस्टमैटिक. हाँ, can't be eliminated, yes. Systematic withdrawal plan. Now guys, listen to this very carefully, and we are going to relate it with the tax as well. Means how loan can be used and how SWP can be used parallelly guys. Means हम लोन को SWP के साथ parallelly कैसे यूज़ कर सकते हैं, how we can use that. Now let's see. एक्सपेंस रेशो, आई एम अमन, जब हम प्रैक्टिकल जस्ट करने वाले हैं इसके बाद, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द एक्सपेंस रेशो एज वेल, राइट. इफ देयर इज म्यूचुअल फंड हु हैव सिलेक्टेड, guys, your assume if the mutual fund is having selected in the given great returns, STP won't reduce any returns. See what STP is doing guys. Let's see, I am a mutual fund and you are a mutual fund. I am having 66 lakh rupee in my account, in my corpus, जो किसी इंसान का है. He wants to transfer my money to a new mutual fund or new mutual fund to a new fund managers. That is you, right? So मैं 66 लाख रुपए इकट्ठा नहीं डाल रहा हूँ, because it is done systematically. Not the complete 66 lakh rupee would be transferred. It would be just like I would say 1 lakh rupee, 50,000 or 2 lakh rupee. तो जब तक until and unless some money is in my account, means today I transferred 1 lakh, next month again 1 lakh. So my account, my corpus is decreasing slowly, 66 lakh, then 65 lakh, 64 lakh. But until and unless the money is with me, you are getting interest from me as well, and whatever money is transferred to you, you are getting interest on that as well. At both places you will be getting returns, right Tejas? Okay. Now coming to this SWP guys, I want you to focus over here once more. Just think. Now just think guys, you want to buy a car. आपको एक गाड़ी खरीदनी है, right? सबसे पहले SWP होता क्या है, what exactly it is? Systematic withdrawal plan. Means I am withdrawing something. So it could be the money which I would be using, like monthly income or fixed income, right? For example, a car will cost me 15 lakh rupee. 15 lakh. Alright? Now, हमेशा इसमें याद रखना, systematic withdrawal plan में, if my withdrawal amount is less than the return amount of the mutual fund, then my corpus will never be touched. My corpus will never be decreased. Let me show you how. अगर
15 लाख रुपए मेरे पास है गाइज, आई वॉन्ट यू टू डू 15% ऑफ दिस 15 लाख इमीडिएटली। मुझे बताओ गाइज। यस अमन, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। 15% ऑफ 15 लाख रुपी गाइज। Everybody, please. Now divide it by 12. It would be 18,000 per month, right? So installment हमारी गाड़ी की जाएगी 15,000 के आसपास। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? What I am going to do, what we are going to do over here, we are going to withdraw installment monthly income of 12,000 over here. Guys, I want you to see. मैंने 12,000 रुपये हर महीने इससे विड्रॉ करूँगा। आई विल विड्रॉ 12,000 रुपी एवरी ईयर। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वी आर अगेन कीपिंग 15% बिकॉज म्यूचुअल फंड्स ऑन एन एवरेज गिव 15% रिटर्न। अब यहाँ पे देखो गाइज, आई वॉन्ट यू टू सी एवरीबडी। टोटल इन्वेस्टमेंट थी मेरी 15 लाख जो मैंने लमसम डाला था। आई पुट 15 लाख रुपी एज अ लमसम, मैंने इकट्ठा 15 लाख डाल दिया था, राइट? एंड मैंने विड्रॉ किया 18 लाख रुपी। आई विड्रू 18 लाख रुपी, मतलब मैंने गाड़ी खरीद ली इससे, राइट? स्टिल मेरे अकाउंट में 39 लाख रुपी इज अवेलेबल। गाइज, आई होप यू आर विद मी। व्हाट आई वांट टू से, अगर हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, इफ़ वी विड्रॉ द अमाउंट विच इज़ लेस देन दिस रिटर्न, तो ये मेरा कॉर्पस ये कभी नहीं घटता। इट if I withdraw the amount per month salary or per month income or fixed income, right, just like bonds, which is less than the mutual fund returns, always less than mutual fund returns, my corpus amount will never be touched, and I will be getting interest again and again and again on it. Now let me repeat myself again over here, guys. This is very crucial to understand. For example, if I would have withdrawn over here 25,000 rupee per month, तो ये देख लो मेरा कॉर्पस खाली हो जाता। माई कॉर्पस वुड हैव बी शॉर्ट ऑफ -17,000, -17 lakh. Now we are playing very smart over here, guys. What we are doing, we are withdrawing the amount which is less than this corpus, which is less than these returns. Now let me give you a very simple idea of this, what I want to say. म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 15%. इफ द रिटर्न ईयरली रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड वॉज 15%, you have taken a loan at the rate of 10% per annum. Just for an example, guys, आपने 1 लाख रुपया लगाया म्यूचुअल फंड में, यू आर गेटिंग 15% रिटर्न। आपने 1 लाख का लोन लिया, यू आर पेइंग 10% रिटर्न। तो आप फिर भी यू आर स्टिल एट द प्रॉफिट और एट द ईयरली गेन ऑफ 5%. दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो व्हाट आई वांट टू से, इन SWP यू पुट योर मनी, आप अपना पैसा इकट्ठा डालते हैं, and you get monthly income out of that, and that income you will decide how much you want. So if you want, guys, 13,000, and if you really want to increase the number of years as well, you can. See guys, आपका जो investment amount है वो कभी कम नहीं होगा, it will never get decreased. See, it is already increasing. अगर हम इसको अगले 20 साल तक भी पैसा चलाते हैं, if we just we don't withdraw anything from here, जो हमारा 15 लाख था वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें वी विल बी गेटिंग 15% रिटर्न। इसमें वी कैन विड्रॉ 32 लैक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 32 लैक्स जो हमने विड्रॉ किया, स्टिल 84 लैक्स आर देयर एज प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ अनटच्ड, एंड ऑन दैट यू आर गेटिंग 15% रिटर्न एवरी ईयर। गाइज, इज देयर एनी डाउट ऑन दिस व्हाट आई वांटेड टू से? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। शैल आई रिपीट इट वंस मोर? Anybody who wants me to repeat it? What I want to say, you are putting your lump sum amount once, you don't touch this thing, you withdraw monthly income which is less than these returns, means 15% से कम, हमने सिर्फ 10% withdraw किया, we withdrew just 10%, still 3%, 5% is still there in the mutual fund, so I am not touching these 15 lakhs. I still withdrew 32 lakhs. मैंने 32 लाख रुपया अपना यूज़ किया, I partied, I enjoyed my money, still 84 lakh rupee would be there in my corpus.
So Astha, I'm just telling you which option is better, but guys, I hope you got the point, which option is better. uh, what are these tools? Right now, coming to the point how we can use it, and I will be answering the Astha's question as well. Means which one is better? Yes sir, means instead of paying 15 lakh for the car, yes, car वाले में मैं अभी आ रहा हूँ, I'm just coming to that. Let's relate all these things. You started a sip of 2000 rupee, right? आपने सिप स्टार्ट की आज से. इफ यू स्टार्टेड अ सिप ऑफ 2000 रुपी, वेयर वाज दैट सिप कैलकुलेटर? हाँ, सो आई स्टार्टेड अ सिप ऑफ 2000 रुपी टुडे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. तो आप तब कितने साल के होंगे? यू विल बी ऑफ 26. आप 40 के होंगे. यू विल बी अराउंड, इफ यू आर 26 टुडे, यू विल बी अराउंड 40s, इन योर 40s. यू हैव दिस कॉर्पस ऑफ 26 लाख नाउ. आपके पास 26 लाख का कॉर्पस है. व्हाट डिड यू डू? You transferred this 26 lakhs to a different mutual fund, or you converted this 26 lakhs, even if you not transfer, if you don't want to transfer, यहीं रहने दो, but you converted this 26 lakh into SWP now. अब आपने जब SWP convert किया 26 lakhs for next 20 years again, अगले 20 साल के लिए, तो guys it was just nothing. आपने कुछ नहीं किया, पैसे को घुमाया, and you will be withdrawing 31 lakh rupee every month. हर मतलब 31 lakh you will be withdrawing in the passage of next 20 years. मतलब आपको 13,000 सैलरी आएगी हर महीने. मतलब आप समझ लो 2 लाख के आसपास every year, and you will be having a corpus of 2 crore rupee just spending those 2000 rupee SIP. Guys, you are with me? Everybody with me? टोटल सृजन, टोटल विदड्रॉल्स का मतलब है इन 20 ईयर्स में इतना पैसा आपने निकाल लिया हुआ है. मीन्स इन दीज 20 ईयर्स यू मस्ट हैव विदड्रॉल दिस टोटल अमाउंट. दिस इज अ टोटल अमाउंट. आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योर सेल्फ गाइज. जस्ट डू 13,000 बाई 12. कितना आता है? जस्ट डू इट गाइज. 13,000 रुपी यू आर गेटिंग एवरी मंथ सैलरी, राइट? एंड देन मल्टीप्लाई इट बाई 12. सो इट इज़ 1,56,000. देन मल्टीप्लाई इट बाई 20, सो 31 lakhs. What I want to say, आपने ये पैसा एंजॉय मारा. यू आर एंजॉइंग दिस सैलरी एवरी मंथ 13,000. सो टोटल इन नेक्स्ट 20 years you will be easily withdrawing 31 lakh. Still in your account there will be 2 crore 55 lakh and 807 rupee. Guys, you are with me? Just final amount का मतलब है, final value का मतलब which is still available in my account, my principal amount, my corpus account, my corpus amount. Final amount means which can be withdrawn. Which final amount means, guys, over here it is the amount which is still with the mutual fund and on which I am still getting 15%, जो अभी भी available है guys. Sir, but there is a catch. There will be, see, time value of money concept that we will be, see, we can increase this thing as well guys. You just see, don't just see this thing in the form of कि 13,000 की वैल्यू क्या रहेगी. You just see this corpus as well. It was a good question as such, Inderpal, but even seeing the time value of money, we have 2 crore rupee in our corpus. Still we have, even enjoying this 13,000 every month. Guys, are you with me? Same question. What question guys? Vineet, sir, 2000 SIP per month for 20 years. Yes, please ask this question again. 2000 का SIP किया for 20 years, will be transferring our corpus to SPP, STP. See. You did SIP for 20 years and you collected 60, where it is, SIP, 2000 SIP for 20 years. I made 26 lakh. All right, you made 26 lakhs. Now you have two options. Option number 1, you just keep it like this and let it grow. अगले 10-15 साल और ऐसे ही चलने दो. You will be making 1 crore rupee next 30 years. Or else what you can do, you can use STP and transfer this money to some different mutual fund. This is also a way, right? Third way would be you convert this SIP. You stop the SIP now. You convert it into SWP in the same mutual fund. Now on this 26 lakh rupee, you will be getting 13,000 every month in your account. ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, right?
इसके अलावा ये जो पैसा बढ़ रहा है आपका, द मनी इज ऑल्सो गेटिंग appreciated, right? You will be getting the capital gain on this 26 lakh that will become next after 20 years, that is 2 crore rupee. Even we see time value of money, time value of money के हिसाब से 2-3 करोड़ है समझ लो guys, 2.5 crores. Even if we see money is depreciating, even if we see money is eroding as such, right? Still half the value होगी ना. If not half, at least you made 80-90 lakh rupee from just 2000 rupee which you started investing. आपने तो क्या की, you just invested 2000 rupee guys. टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख रुपया. यू फॉर दिस 4 लाख रुपी जो कि बैंक में भी तो योर मनी इज गेटिंग इरोडेड. फ्रॉम दिस 4,80,000 यू मेड दिस मच अमाउंट. guys, I hope you are with me. You made this much amount. Where is the amount? This much amount. Any question? Any question? Guys, any question? Suran Shekhar Datta, 20 years equity fund, invest in equity saving. हाँ, that we are going to see guys, हम कौन से फंड में इन्वेस्ट करते हैं. बट आई होप यू गॉट द टूल्स नाउ. you are very good with the tools, how we can use this, right? Now coming to loans versus SWP, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई वॉन्ट यू टू सी, राइट? अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगेगा बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस. इसके बाद सब आसान है, एंड गाइज म्यूचुअल फंड इज़ मच ईजियर देन इक्विटी रिसर्च. अभी मैंने इक्विटी रिसर्च पढ़ाया नहीं आपको. वी विल बी स्टडिंग दैट इन द कमिंग क्लासेस. एंड म्यूचुअल फंड में भी there is financial modeling done on the mutual funds. So I'm not going into Excel sheet right now because it will really make you crazy. We are doing the practical stuff right now. After this class, you are good to go. One more thing I would like to say over here, it is much easier than equity research. Equity research इससे ज़्यादा complicated रहता है थोड़ा सा. Please Indrapal, you don't need to take permissions to ask questions. Ask as many questions if you want. सर इफ़ यू डोंट वांट टू विड्रॉ 13K परमानेंट SWP, सो उसको ना आप लॉक इन करके रख लो. प्रखर, व्हाट यू कैन डू, प्रखर चंद्रा, इफ़ यू डोंट वांट एनी विड्रॉल्स, यू जस्ट लॉक इन फॉर नेक्स्ट 20 years. You don't need to withdraw the money. And if you have some extra amount, you keep on doing lump sum as well. There is no need to withdraw. आप इसको बंद भी कर सकते हैं. So if you don't withdraw anything, अगर आपने यहाँ से पैसा बिल्कुल बंद कर दिया, just withdrawing 500 rupee per month, your corpus would be 4 crore rupee. अगर आप withdraw नहीं करते, if you don't withdraw the money, just keep it like that, right? Now after India, I want to transfer into mutual fund. Feel free to ask questions, guys. I invested in 29 years in Indrapal, please repeat your question. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. एक बार एक कंसेप्ट समझ लो गाइज, देन इट विल रियली ब्लो योर माइंड अगेन. अब हमने लेना है लोन. वी आर गोइंग टू टेक लोन अगेन अगेंस्ट SWP. हाँ, सो गाइज प्लीज फोकस ओवर हेयर वंस मोर. अब लोन कैलकुलेटर आता है ये. सी 60 लाख रुपया लोन, एक आजकल घर की कीमत, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ अ होम राइट नाउ डेज, अ फ्लैट और मे बी समथिंग, मिनिमम तो 60 लाख चाहिए. मिनिमम 60 लाख रुपी इज़ रिक्वायर्ड. उससे तो ऊपर जितना मर्जी लो, 1 crore 2 crores, बट 60 लाख से कम तो आई डोंट थिंक नाउ डेज यू कैन बाय रियल एस्टेट, राइट? नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर, रियल एस्टेट का जो इंटरेस्ट रेट रहता है, होम लोन का इंटरेस्ट रेट, गाइज आई वॉन्ट यू टू गूगल दिस. व्हाट इज़ द होम लोन इंटरेस्ट रेट? एवरीवन शुड नो. कभी तो आप घर के लिए लोन लोगे. व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स इन इंडिया? गूगल इट आउट एंड प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स. कभी ना कभी तो यू वुड बी टेकिंग लोन्स. सी गाइज, इट रेंजेस बिटवीन 8 to 9%. सो मैंने यहाँ पे 9.2 लिया है. यू कैन टेक 9.5 एज वेल. वी आर टेकिंग बिट टाइट, वी आर टेकिंग टाइट मेजर्स. अब सी, आई वॉन्ट यू टू प्ले स्मार्ट ओवर हेयर गाइज. अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है. और ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही विल गेट द रिप्लाई. सी गाइज, जब हम लोग होम लोन लेते हैं, वेन एवर वी टेक होम लोन्स, हमारे माइंड में क्या रहता है? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड, जल्दी होम लोन दे देना है वापस, एज अर्ली एज पॉसिबल. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अवे दिस लोन, मीन्स ओवरकम दिस लोन सिचुएशन इन माई लाइफ, है ना, ताकि लोन हमें रही ना.
बट गाइज इफ वी सी इन्फ्लेशन कंसेप्ट, लोन लेने में बेनिफिट होता है। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन इज इरोडिंग द लोन, रियल लोन वैल्यू। तो अभी हम इन्फ्लेशन वाले कंसेप्ट में नहीं जाने वाले हैं। जस्ट इमेजिन अगर इन्फ्लेशन हाई होती है, व्हेन एवर इन्फ्लेशन इज़ हाई, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन इज़ 7%, लोन आपने लिया 9%, तो इन रियलिटी 7 - 9, 9 - 7, यू आर पेइंग 2% इंटरेस्ट ओनली। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना अच्छा। इन्फ्लेशन इज़ बेस्ट टूल फॉर टेकिंग लोन्स। नाउ लोन जल्दी मत कभी दो, डोंट पे द लोन एज फास्ट एज पॉसिबल, उसको लंबा खींचो। तो इसको लंबा खींचने का फ़ायदा क्या है? इफ़ आई एम पेइंग इट इन 10 years, तो आई एम पेइंग 76,000 रुपी EMI। अगर इसको मैं 15 साल खींच दूँ तो आई एम पेइंग 61,000 EMI। इसको 20 साल खींच दो एंड EMI को लंबा करो। नाउ इंस्टेड ऑफ 60,000 यू आर पेइंग 50,000 EMI, राइट? ये हो गया। हाँ, आई डू एग्री विद, आई नो यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, सर हमें ज़्यादा पे भी तो करना पड़ेगा। मीन्स इफ़ आई एम पेइंग दिस लोन इन 10 years, तो आई एम पेइंग 91 लाख रुपी। 60 का 60 lakhs का मुझे 91 लाख देना पड़ा, राइट? बट इफ़ आई इंक्रीज इट टू 20 years, आई हैव टू पे 1 करोड़ 31 लाख रुपी इस 60 लाख का। ठीक है, आप मुझे मारोगे अभी कि सर इतना ज़्यादा देना पड़ रहा है इतना लंबा खींच के। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले स्मार्ट गाइज, प्लीज थिंक, सी ओवर हियर, राइट? हमने यहाँ पे 60,000 की सिप के बजाय इंस्टेड ऑफ 60,000 रुपी EMI, वी आर पेइंग 50,000, अराउंड 50,000। जो आपका 6,000 7,000 बचा, 7,000, ठीक है, उसकी आपने चलाई सिप। यू स्टार्टेड अ सिप ऑफ डैट। एनी हाउ यहाँ पे आप 60,000 तो पे करते ही करते, राइट? बट यहाँ पे हमने जानबूझ के कम पे किया, वी इंटेंशनली पेड लेस। Now, what happened over here? That money which we had to pay over here as EMI, we transferred it into SIP. Now, in next 20 years, देखो 20 साल लोन, 20 years लोन, 20 years same SIP. You will be accumulated 92 लाख रुपी आपके अकाउंट में सिप से ही बन जाएगा ना। हमें क्या बेनिफिट हुआ? What is the benefit, right? Now I want you to do a small calculation as well along with this, guys. बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लो। अगर हम, if I am paying 50,000 रुपी पर मंथ, जस्ट इमेजिन 50,000 रुपी पर मंथ, तो साल का कितना हुआ? 50,000 इंटू 12 करो, 50,000, डू इट गाइज, 50,000 इंटू 12, साल का 6 लाख रुपी यू आर पेइंग, राइट? नेक्स्ट 10 years हाउ मच यू विल बी पेइंग? 60 lakh rupee. Next 15 years, how much you will be paying? 15 into 6, guys. 15 into 6 would be 90 lakh rupee. आप अगले 15 साल में 90 लाख रुपी तो वैसे ही दे चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी पेड 90 लाख रुपी लोन, मीन्स ऑन EMI in next 15 years you would have paid 91 lakh rupees. Now how much money is remaining? 40 lakh, 30 plus 10, 90 के बाद 10, 100, 100 means 90 plus 10, 100, 1 crore, and next 31 lakhs, 40 lakhs is left. Now guys, just see, you are at the profit of 50 lakh rupee. इसी सिप से, इसी पैसे को बचा के you made 50 lakh rupee extra in your account. उसको आप एक और घर खरीद लो। You're getting a point, guys? What I want to say, आपने इसी लोन का जो सिप आप पहले देते, if you would have paid this SIP, अगर आप जल्दी दे देते तो आप 60,000 EMI देते। बट आई एम सेइंग इस EMI को छोटा करो और टाइम को लंबा करो। इंक्रीज द टाइम हॉरिजन एंड डिक्रीज द EMI एंड यूज दिस 6,000 रुपी एज अ सिप। वंस योर लोन वुड बी, वैसे तो आपका लोन बीच में कंसाइड कर जाएगा, बट आई वॉन्ट टू से आपका लोन और आपकी सिप एक टाइम ऐसा आएगा, सिप वुड बी ग्रेटर देन द लोन अमाउंट। बट यहाँ पे अगर हम नॉर्मली भी चलें, इफ़ वी जस्ट सी द नॉर्मल अमाउंट, आपकी सिप, आपका लोन 20 साल में आप दे रहे हैं, इन नेक्स्ट 20 years यू विल बी हैविंग 90 लाख इन योर अकाउंट इटसेल्फ। तो ये जो 90 लाख आपने बचाया था, यू बाय सम अनदर रियल एस्टेट फ्रॉम दिस। इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा? यू आर यूजिंग द सेम अमाउंट विच यू वुड हैव यूज्ड इन EMI ऑफ द लोन इन सिप। गाइज, एनी डाउट्स ओवर हियर? हाँ,
Very good, Swarn Shekhar Datta. Means this is what I wanted to say, exact amount. 15 साल में, this is what I was saying as well. 15 साल में it will coincide guys. SIP amount जो आपने सिर्फ 6,000 से चलाया था, 7,000 SIP amount will exceed the remaining loan amount guys. Take the loan, invest in SWP. I'm just coming. SWP. I'm just coming. Preet Jot, but it's a good concept. Due to expanding time period, the interest will not. See now, Aman, it's a good question. When you are taking a loan, it could be house loan, it could be car loan. जो interest rate negotiations हैं, that you have to do with the bank. As such, interest rate fixed ही लेते हैं लोग, right? उसमें ज़्यादा benefit रहता है, right? Now coming to one more thing, SWP. Preet Jot had asked this question. See guys, SWP, and there was one more question कि सर इसमें से अच्छा कौन सा है? Which is better? SIP is better, STP is better, SWP is better. See, for students and for गरीब people like us, आम आदमी like us, SIP is good. ठीक है? Means you are putting 10,000 rupee SIP, 2,000 rupee, 5,000 rupee, because इतना ही पैसा है आपके पास. You have this much amount of money. If you have substantial amount of money, you're a rich person, your earnings are in quite 50-60 lakh rupee per annum you're earning, so SWP is good for you. Means if you have lump sum money in your hand, आपके पास पहले से ही पैसा पड़ा है, then SWP is a good tool. You don't have the money right now, then SIP is good. Now आपको एक और example दे देता हूँ. Let me give you one more example over here. SIP. See, many of you are working. अगर हम 10,000 की SIP करते हैं, 10,000 rupee SIP for next 20 years, guys, 1 crore 32 lakh rupee you will be making even in bad times of mutual funds. अगर ये 18% हो गया, then 1 crore 90 lakhs. If you keep increasing this time, तो compounding really grows very insane and at very insane speed. कब पहले 1 करोड़ था, अब 1 साल में 1 करोड़ बनेगा आपका. You will make 1 crore rupee every 1 or 2 years. See, 10,000 रुपये से you can make 7 crore rupee in next 28 years. अगर आप अभी if you are in your 20s and if you invest 10,000 rupee, so you can make this much amount of money, 6 crore rupee in next 27 years. जब आप 50 साल के होंगे, when you will be touching your 50s, you can easily make this much amount of money. And now people will say, sir, time, पैसे की purchasing power कम होती है, या कितना कम हो जाएगी? How much it will erode? Even this 6 crore rupee would be equivalent to 1 crore 2 crore at least. अगर 7 साल वाला concept लेके भी चलें, we just see the 7-year concept of inflation. Guys, any doubts? I want you to do it by yourself. Whenever you're free at your home, I want you to do it by yourself. These are just you just Google it, type in Google SIP calculator, SWP calculator, loan calculators. No need to do in Excel. जब सारा computer AI आ ही गया, तो why to use your brains, guys? हाँ, Excel का मैं बता दूंगा तेजस, but it will really confuse people, many of the people in the first class itself. That's why I didn't show. Expanding time period. See, Joshua, good question. Good question. Capital gain tax would be increasing, because abhi to it's less, but yes, it will be increasing in future. That you have to keep in mind. Government is anyhow not going to spare you in the taxes part. I hope this is clear to everybody. So shall we proceed further now? Car loan रह गया. This car loan was left. The same concept can be applied with the car loan. Don't just go and buy car. अगर आपके पास, if you have money, for example, आपके पास पैसा है, you have 15 lakh rupee in your account, but people will straight away go and buy a car. Just a minute. कार मत खरीदो ऐसे. Put this SWP. Put this 15 lakh rupee in a SWP amount in a mutual fund, right? And withdraw at least 13,000 per month. 13,000 के हिसाब से निकालते रहो, right? For next 10 years, I would say. 7 साल तक लोन देना पड़ता है, तो चलो 9 years रख लो खींच का. So what I want to say over here, थोड़ा बहुत अपने से डाल लेना, 15,000 या something like that. Guys, अगले 9 years, in next 9 years you will be paying 14 lakh rupee, right? 14 लाख रुपये आपने दे ही दिए होंगे, and still 24 lakh rupee will be in your account. आपके अकाउंट में 24 लाख रुपया बचा होगा. 24 lakh rupee would be there in your account, and 14 lakh rupee you would have already paid. So it is a good amount, good investment technique. आपने 14 लाख रुपए गाड़ी का तो दे ही दिया,
बल्कि 24 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी होगा इन नेक्स्ट 9 ईयर्स. सो डोंट जस्ट बाय द कार, जस्ट बाय म्यूचुअल फंड. एंड म्यूचुअल फंड की आपकी जो फिक्स इनकम लगेगी उससे आप EMI दो, गाड़ी लोन में ही लो. गाइज आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, गाइज नुकसान करवाना है, डेप्रिसिएशन लगवानी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के हिसाब से. इवन इफ यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वाई शुड आवर मनी गेट इरोडेड एंड डेप्रिशिएटेड? बैंक का होने दो ना, लेट इट बी बैंक्स मनी. बैंक से 60 लाख रुपए है, दो उसको लंबा खींचो, बैंक का पैसा इरोड होने दो, नॉट अस, नॉट आर्स मनी. वन मोर थिंग गाइज, व्हेन यू आर बाइंग अ हाउस फ्रॉम दैट 60 लाख रुपी, हाउस भी तो अप्रिशिएट होगा. योर वैल्यू ऑफ हाउस विल ऑल्सो अप्रिशिएट. वी आर यूजिंग म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से तो हमने यूज़ किया ही किया, हमने तो हाउस भी तो अप्रिशिएट हुआ. सो 160 लाख रुपी हाउस आफ्टर 20 ईयर्स विल कॉस्ट 1 करोड़ रुपी. So even if you sell that house, you will win positive, positive, positive throughout. हर जगह positive, positive रहोगे आप. Guys, I hope you are with me now. We used mutual funds, right, as a tool. Now, house that you had already purchased, that is also an asset. And after 20 years, its value will also appreciate. तो आपका लोन तो वैसे ही पूरा हो जाएगा करने पे, अगर if you play that smart. Guys, I hope you are with me. Everybody is with me. एंड इन्फ्लेशन हम सब चिल्ला रहे हैं ना, एवरीबडी इज शाउटिंग इन. इन्फ्लेशन इज़ गुड इफ़ यू आर टेकिंग लोन्स, बिकॉज मनी इरोड्स. अपना पैसा क्यों इरोड करवाना, बैंक का करवाओ. एंड इन म्यूचुअल फंड यू आर गेटिंग 15%, दैट इज़ मच हायर देन बैंक रेट, इन्फ्लेशन रेट. अगर इन्फ्लेशन 5% भी टच करता है, सो इट इज़ बैंक्स लॉस, नॉट आवर लॉस. गाइज विद मी एवरीबडी, ये इन्फ्लेशन वाला कंसेप्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, राइट? All right, now let's move to the next topics. अब यहाँ पे कुछ concept आते हैं. Now coming to the practical things. See guys, I want you to use 3 websites parallelly. I want you to write it down. One is advisorkhoj.com. ये बहुत पुरानी website, it's very old website, 2012-13 website है ये. I'm using this from that time. This is number 1 website. RupeeVest is also good. इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप. And is Zerodha का coin, right? Why I am using coin, that I will letting you know. ये expense ratio वाला जो question किसी ने पूछा था, that will be answered by this. 3 websites we would be using. Apart from this, till now we had used calculators. You know, loan calculator, SWP calculator, SIP calculator. Inflation calculator मैंने रखा था to show you, but I knew that you are going to ask this time value question, but no need. You just use it, use your brain that कितना की टाइम वैल्यू के हिसाब से इरोड हो जाएगा पैसा, राइट? नाउ 3 calculators, just type in the Google that SIP calculator, SWP calculator, you will get so many calculators. Grow wala was quite simple to use, that's why I used it, but all the calculators are good. Now coming to the practical applications, कि सर अब म्यूचुअल फंड कैसे शॉर्टलिस्ट करें, हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ म्यूचुअल फंड, राइट? सबसे पहले तो इतने सारे म्यूचुअल फंड, राइट, एंड उसमें भी फर्दर टाइप्स, एंड उसमें भी फर्दर देयर आर सो मैनी क्लैरिफिकेशन. सो व्हेन यू विल बी यूजिंग RupeeVest, गो टू टूल्स, गो टू म्यूचुअल फंड स्क्रीनर एंड क्लिक ओवर हेयर. ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस वुड कम. व्हेन यू आर यूजिंग एडवाइजर खोज, गो टू म्यूचुअल फंड रिसर्च एंड क्लिक ऑन दिस म्यूचुअल फंड ट्रेलिंग रिटर्न्स. Something like this would come, right? Both the websites are good at, this website is having some another things good, other is having, but not all the websites are 100% complete. Means you have to combine the research, right? And it depends how user friendly you are with any website. Now coming to which type of mutual fund is good. Now guys, as such there are so many types of mutual funds. Now there would be debt funds. So it is now let me repeat myself again. Whatever being taught in the class should be considered as education, should be considered only for educational purposes. It will not be an investment advice to everybody, right? Now debt fund में आप invest नहीं करोगे. You will not invest in debt funds. Reason behind this, debt funds are mutual funds जो आपसे पैसा लेते हैं, take money from you and invest only in bonds.
So why should we not invest in bonds, sir? Because in all the debt funds जो आपके रिटर्न बनेगी, let's open any one of these, गिल्ट फंड करते हैं, गवर्नमेंट का फंड है ये, राइट? सो दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सी कितना रिटर्न मिल रहा है? 6%, 7%. दिस इज़ द एवरेज कैटेगरी रिटर्न. मतलब इन सारे म्यूचुअल फंड्स का एवरेज इतना रहेगा. दिस वुड बी द एवरेज गाइज. ये 10% 1 ईयर का है, सो डोंट कंसिडर इट 10%, जस्ट कंसिडर इट as 5% to 7% is the range for these mutual funds, right? So debt fund is a complete no. Instead of investing in debt fund, invest in PPF account, invest in an FD, invest in gold, invest in ETF that we are going to discuss. But इसमें नहीं, right? PPF is better, 7.5, 7.7, 7.2% return you will be getting over there. That too 100%, no risk at all. यहाँ पे there is a risk as well, right? What is a PPF, sir? PPF सारे अपने बैंक में आज फ़ोन करना, एवरीबडी कॉल योर बैंक्स, आस्क कि मुझे PPF अकाउंट खुलवाना है. ये तो एडवाइस दे सकता हूँ मैं, बिकॉज देर इज़ नो रिस्क इन दैट. PPF इज जस्ट लाइक FD एंड RD गाइज. FD में यू गेट 6.2% something, and in PPF you get 7.2%. 15 years lock-in period is there, but it is good. And you can invest 1.5 lakh rupees. There's Sukanya Samriddhi Yojana for girls, for children, girl child as well. So in debt funds, it's a complete no. हाँ, PPF में 7.1% शुरू से करता है. सो डेट फंड कंप्लीट नो. वाई टू इन्वेस्ट, वाई टू टेक रिस्क इन इन्वेस्टिंग सच काइंड ऑफ, इससे अच्छा उसमें लगा लो. दिस इज कंप्लीट नो. नाउ कमिंग टू हाइब्रिड फंड्स. सी हाइब्रिड फंड्स आर गुड, बट हाउ मच रिटर्न दे मेक? लेट्स सी. दे मेक अराउंड 12%. अब देखते हैं. सो दे आर मेकिंग अराउंड 10% एंड 15%, बट 12% लेके चलो. They make around 12% returns. Conservative, let's see. ये देख लो, 10 से 12% रिटर्न रहता है. दे आर गिविंग 10% ओवर हेयर. सो अगर 10% के लिए ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, इफ़ यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ 10%, वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन सच अ PPF में लगा लो, गोल्ड में लगा लो. सो हाइब्रिड फंड इज अगेन अ नो फ्रॉम माई साइड. Let's not invest in hybrid fund. Even if you go for aggressive funds. Now I'm not going into the definitions guys, right? मैं definitions में नहीं जा रहा हूँ right now, because we had already discussed, and these are very simple guys. There's no tough thing in this. Today we are just going for the practicals straight. So hybrid fund aggressive, that means they will be investing your money lot in equity, that too in small cap equity, right? तो यहाँ पे आप देख लो 10%, 11% रख के चलो. We are seeing for 10 years 11%, 12%. ये तो व्हेन यू आर वेरी लकी कि आपको 2 साल में इतना मिल जाएगा. बट गाइज जनरली इन हाइब्रिड फंड्स यू गेट लेसर देन द इक्विटी फंड्स. उससे कम ही रहेगा. अगर इक्विटी फंड का वी आर टेकिंग 15% रिटर्न्स, सो हाइब्रिड फंड वुड ऑलवेज बी लेस देन दैट. सो 10 to 12% इज द रेंज. सो हाइब्रिड फंड इज अ कंप्लीट नो. सो वेर एवर यू विल फाइंड दिस नेम हाइब्रिड फंड, इट्स अ नो. सो अभी तक डेट फंड इज अ नो, हाइब्रिड फंड इज अ नो. फंड्स ऑफ फंड्स. See, funds of funds, public provident fund. See, they have multiple beneath. हाँ, public provident fund. एक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड भी होता है, राइट? और एक कंपनी में जो आपको PF मिलता है, that is also there. Don't get confused. Talk to your bank. These people will guide you, right? Account opening is free. You just if you are having account in SDFC, go there. If you are having SBI account, go there and open a PPF account. Start तो कर ही लो, 1,000-1,500 डालते रहा करो हर महीने. 7.2% is good, right? Sonal Shekhar Datta, you're very active yaar. Yes, 8% return in EPF, but that is not again for general public. It is for employees, right? So provident fund has the prefix of the provident fund becomes confusing many times. Now coming back to the topic again. So hybrid fund is a complete no. Funds of funds. See what is happening over here now. Funds of funds, domestic funds of funds, international, overseas, ये क्या करते हैं? These are the mutual funds who take money from you and invest in other mutual funds. Mutual fund ही mutual fund में पैसा लगाता है. Means I am taking money from you and investing your money in another mutual fund. यहाँ तो expense ratio 2 बार देना पड़ेगा. You have to pay expense ratio twice. एक तो मैं आपसे पैसा लिया, मैं I will also charge expense ratio. Then जहाँ लगाया, I invested your money some another mutual fund. They are also charging an expense ratio. And
So that's why you're paying double expense ratio. कहाँ 1% या less than 1% should be there. Now you are paying around 3% or more than 2%. Not advisable at all. Really not advisable. All right. Now funds of funds not advisable. If you have, so who should invest in all these funds? Those who have a lot of money. वो तो फिर सभी में पैसा डाल दो थोड़ा थोड़ा. But if you are people, journal normal people like us, we should use our money very wisely. Now coming to equity, ये है हमारा topic for the day. ये है, this is something we are going to research. Equity funds are good for investments, right? Generally you make 15% returns. Generally on an average 15% return बनता है. Very bad days कम भी हो सकता है. Good days can exceed 15% very easily, 18%, 20% as well. Firstly, सर क्या म्यूचुअल फंड में पैसा ज़ीरो भी हो सकता है? कैन मनी बिकम ज़ीरो एज वेल? एब्सोल्युटली, मनी कैन बिकम ज़ीरो एज वेल ओवर हेयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैन म्यूचुअल फंड डिफ़ॉल्ट? यस, एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो डिफ़ॉल्ट. रिस्क तो है, देर इज़ अ रिस्क ओवर हेयर. इट्स नॉट लाइक स्टॉक मार्केट व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी एंड you know it's not like bonds and FDs. चलो मैं पहले FD के एग्जाम्पल लेता हूँ. इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड योर मनी इन FD, योर मनी सिक्योर इवन आफ्टर 5, 10, 20 ईयर्स, आपका पैसा मिलेगा. बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, देयर आर चांसेस यू विल गेट योर मनी बैक. वेरी रेयर चांसेस ऑफ डिफॉल्ट. कमिंग टू स्टॉक्स, डेफिनेटली बिग कंपनीज, they make Indian GDP, who create the GDP of India. They may sustain, but it's very rare a single company crossing the bar of 50 years or 100 years. मेरे को ऐसी कोई कंपनी बता दो जो 100 साल पुरानी है. वेरी रेयर कंपनीज आर देयर. सेम goes with the mutual funds as well. Mutual fund is also risky. Mutual fund can also default and mutual fund can also make your money go and wash away. Mutual fund में returns negative होते हैं. Yes, there are chances when the mutual fund also give you negative returns. The best example was COVID crisis. All the mutual funds were red. Even few days back when the stock markets were very low, the mutual funds were all red, throughout red. I hope you're getting the point. Small cap, हाँ. Now coming कि अब इसमें पैसा कहाँ लगाना है? In equity, where should you invest your money, right? Now अब यहाँ पे थोड़ा सा conceptual चलते हैं पहले, and we are going to see how equity funds work. एंड इसमें कितने टाइप के फंड्स होते हैं. हर्ष के तो नेगेटिव चल रहे हैं फंड्स. हर्ष, यू शुड टेल अस कि आपने पैसा कहाँ लगाया है. यू शुड टेल अस प्लीज़, सो दैट वी कैन सी. अभी रिसर्च भी हो जाएगी कि हर्ष ने पैसा कहाँ लगाया था. एंड सी स्टेप अप whenever you have expectation that you will be getting increments in future, you should. Debt funds I'm on no. डेट फंड 7% रिटर्न देगा, 5 से 7%. उतना तो आप PPF में लगा लो, FD में लगा लो. वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ओनली देन, राइट? ओके, डाउट्स एनी डाउट्स गाइस, प्लीज आस्क. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एज वेल. गिव बेटर रिटर्न्स देन डायरेक्ट. हाँ, आई एम कमिंग टू डायरेक्ट वाला. तेजस, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो फंड्स, फंड ऑफ गोल्ड. अच्छा, एनवी वाज 18. ओके, सी फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा आई हैड ऑलरेडी टेकन अ क्लास ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, बट चलो नेवर माइंड. नो रिकमेंडेशन इन क्लास अमन. ओके, बट स्मॉल कैप्स में रिटर्न. चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस. इक्विटी में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान एंड देर इज़ अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान. ये सुन लो सबसे पहले. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यू आर बाइंग अ स्टॉक, राइट? यू आर बाइंग अ म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फ्रॉम द AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सीधा सीधा. रेगुलर प्लान इज़ द प्लान जिसमें बीच का ब्रोकर है कोई. देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ ब्रोकर और समवन सिटिंग इन बिटवीन, सो ही विल बी चार्जिंग हिज कमीशन. तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे होता है अराउंड 0.85, मतलब कम होगा. डायरेक्ट प्लान वुड बी हैविंग लेस एक्सपेंस रेशो. रेगुलर प्लान्स वुड बी हैविंग हायर एक्सपेंस रेशोज़. तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ओनली इन डायरेक्ट प्लान्स. रेगुलर प्लान्स यू शुड अवॉइड. नाउ यू आर स्मार्ट. जहाँ जहाँ रेगुलर वर्ड दिखाएगा आपको, वेन एवर यू विल सी अ रेगुलर वर्ड, रेगुलर प्लान, रेगुलर
डोंट इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज बीच में कोई आपका कमीशन ले रहा है. नाउ लेट मी शो यू इन नंबर्स. सबसे पहले एक्सपेंस रेशो होता क्या है, व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशो, राइट. नाउ एक्सपेंस रेशो इज़ द चार्जेस. आपने, मैं म्यूचुअल फंड हूँ फॉर एग्जांपल, आई एम अ म्यूचुअल फंड, राइट. यू गेव अ मनी टू मी, आपने मुझे पैसा दिया. आई विल बी चार्जिंग सम मनी, सम कमीशन ऑन डैट. जो मेरा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अभी सिर्फ ये समझ लो. म्यूचुअल फंड अपना पैसा काटता है बीच में, दे चार्ज सम मनी फॉर डैट, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते. आई चार्ज मनी ऑन योर बिहाफ, राइट, वट एवर मनी यू आर गिविंग टू मी. एक्सपेंस रेशो कैसे करता है डैट आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट इन अ मोमेंट. बट अब ये रखो कि जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगा उतना आपका नुकसान है. मीन्स यू विल बी हैविंग योर रिटर्न्स वुड बी लो, राइट. Another thing is that over here, try to see, अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू. सी यहाँ पे आ रहा है ना, डायरेक्ट प्लान चाहिए या रेगुलर प्लान चाहिए. इफ़ आई सी द रेगुलर प्लान, लेट्स ओपन इक्विटी, अच्छा वाला लेते हैं ना, लार्ज कैप लेते हैं, रिस्क भी कम है. सो वी टुक लार्ज कैप फंड्स. लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनीज में म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा. रेगुलर प्लान, रेगुलर मीन्स कोई और मुझे बेच रहा है, समवन एल्स इज सेलिंग मी. लेट्स ओपन ICI, कौन सा है, हाँ 68,000 करोड़ रुपी. लेट्स ओपन दिस वन गाइज, ठीक है. यहाँ पे एक्सपेंस रेशो, लेट्स सी द एक्सपेंस रेशो ऑफ दिस प्लान इज़ 1.4%. गाइज सभी को दिख रहा है, यू ऑल आर विद मी. सो इन रेगुलर प्लान आई एम पेइंग 1.4% एवरी ईयर, माइंड इट. हाँ, अगर सेम प्लान मैं यहाँ पे करूँ तो लेट मी सी, लार्ज कैप ICICI, विच वन वॉज डैट, आई ब्लू चिप फंड, राइट. लेट्स सी ज़रोदा में कितना पड़ रहा है. ज़रोदा आई एम बाइंग, ये देख लो, द सेम फंड जब मैं बीच में ब्रोकर से लेता हूँ, व्हेन आई एम बाइंग इट फ्रॉम अ ब्रोकर गाइज, आई एम पेइंग हाउ मच, 1.4% TER, टोटल एक्सपेंस रेशो. ये देख लो भाई, एनलार्ज दिस 1.4. ये पॉइंट में बहुत फ़र्क पड़ता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन लैक्स ऑफ रुपी. एंड सेम फंड व्हेन आई एम बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम, ये देखो यहाँ लिखा है ना डायरेक्ट प्लान, दिस इज़ द डायरेक्ट प्लान, इफ़ यू कैन सी डायरेक्ट. सो आई ओनली हैव टू पे हाउ मच, दिस 0.85% एक्सपेंस रेशो. गाइज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबडी. सो हमें हमेशा कौन सा खरीदना चाहिए, विच म्यूचुअल फंड इज़ गुड, डायरेक्ट प्लान. Never ever buy a regular plan if you are a finance student. अगर आप नॉन फाइनेंस के होते, if you would have been from non finance background, then चलो पता नहीं था, लेकिन I hope now you are good to go. Never ever buy regular plan, always go for the direct plan. जब भी आप रेगुलर प्लान खरीदोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा, you know, where it is, growth. Whenever you are buying a direct plan, it would be mentioned over here. Let me show you direct over here. अब इसको अगर यहाँ पे देखें, let me see over here itself, equity large cap ही देखते हैं फिलहाल. So these are equity large cap funds. Let's see the AUM. यही था हमारा, this one was the one, right? ये देख लो. So if I click over here, so regular plan, it would be always mentioned, ये सभी लिखा होगा. तो whenever it's a regular plan, you have to pay higher expense ratio, ज़्यादा charges लगेंगे म्यूचुअल फंड में. अमन, should not be always less than 1%, ऐसा नहीं है. That we are going to discuss, right? Any doubts till now guys? So one thing we did just now, कि जब भी हम म्यूचुअल फंड लेंगे तो हम लेंगे डायरेक्ट प्लान, वी आर बाइंग डायरेक्ट. लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड सेलर हैं मीन्स अगर आप सेलर हो, यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, तब तो आप रेगुलर ही बेचोगे, क्योंकि आपको पैसा रेगुलर से ही मिलेगा. व्हाट आई वांट टू से, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ, यू नो, आप व्हेन यू आर सेलिंग अ म्यूचुअल फंड गाइज, यू आर सेलिंग इट बिकॉज यू अर्न कमीशन. तो अगर आप रेगुलर बेचोगे तभी कमीशन मिलेंगे आपको. सो कमीशन कैसे रहती है, इफ़ यू आर म्यूचुअल फंड सेलर, राइट, you may get one time commission, sometimes the commission is trailing as well. ट्रेलिंग का मतलब है मैंने आपको म्यूचुअल फंड बेचा, आई सोल्ड अ म्यूचुअल फंड फॉर यू. अब जब जितना पैसा डालोगे उसका 1% मुझे आएगा.
10,000 डाला 1%, 1 लाख डाला 1%, हर साल फॉर लाइफ। इससे अच्छा जॉब क्या हो सकता है गाइज? सो इफ़ यू वांट टू बिकम गाइज, इंद्रपाल को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल एवरीबडी? माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू एवरीवन? इंद्रपाल, यू शुड चेक योर इंटरनेट प्लीज़। नाउ रेगुलर प्लान में अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो यू हैव गुड प्रॉफिट्स, यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स। सो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है म्यूचुअल फंड का, तो NISM के एग्ज़ाम दे दो म्यूचुअल फंड के, एंड ये जो 2-3 क्लासेस होंगी, यू आर गुड टू गो गाइज। इसके बाद यू कैन सेल अ म्यूचुअल फंड। एक एग्ज़ाम दो एंड यू विल बिकम ऑफिशियल सेलर। ऑलराइट प्रखर, आई एम कमिंग टू डैट एग्जिट लोड्स एज वेल। अभी आई एम गिविंग यू, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, राइट? नाउ कमिंग टू एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। देखो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं, दे चार्ज मनी फ्रॉम, दे टेक मनी फ्रॉम यू एंड दे इन्वेस्ट समवेयर। इट कुड बी स्टॉक्स, इट कुड बी बॉन्ड्स, कहीं भी पैसा लगा सकते हो। नाउ अगर म्यूचुअल फंड ने बहुत रिस्क की जगह पैसा लगाया है एंड बाइंग सेलिंग चल रही है लगातार, आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, इट नीड्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे आई है, आई नीड टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ मैं। सो इफ आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व, माई टीम इज एक्टिवली इन्वॉल्व, सो वट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर, आई विल चार्ज हाई एक्सपेंस रेशो ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा काम इसमें बढ़ गया है। माई जॉब इज़, आई हैव वेरी फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। इसमें टर्न ओवर रेशो देखनी होती है। नाउ लेट मी शो यू दिस टर्न ओवर रेशो। सो वेन एवर यू विल बी बाइंग अ म्यूचुअल फंड, तो आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे टर्न ओवर लिखा होगा, ये देखो टर्न ओवर। दो आई एम कमिंग टू दिस, आई विल बी कमिंग टू दिस अगेन। दिस टर्न ओवर वुड बी मैंशनड। 20% का मतलब है एक साल में 20% शेयर्स, आउट ऑफ 100 शेयर्स 20 शेयर्स खरीद के बेचे जाते हैं। मतलब स्टिल 80 शेयर्स आर नॉट टच्ड, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर ये 100% हो तो इफ़ टर्न ओवर रेशो इज़ 100%, देन मीन्स आपके शेयर खरीदे बेचे, यानी इफ़ इट इज़ 200, 300, 500%, मतलब आपका, यू गेव योर मनी टू मी एंड विद डैट मनी आई डिड ट्रेडिंग। मैंने खरीदा बेचा, परचेज सोल्ड एंड इट इज़ हैपनिंग कंसिस्टेंटली। सो इट इज़ नॉट गुड। टर्न ओवर रेशो शुड बी लेस फॉर लेस रिस्की एसेट्स, लेस रिस्की म्यूचुअल फंड्स। अगर ये टर्न है वो बहुत ज़्यादा है, देन यू शुड एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स। नहीं तो मत इन्वेस्ट करो उस पर, बिकॉज दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्क ऑन योर मनी, बाइंग सेलिंग। अमन शार्प रेशो में आऊँगा, आई विल बी कमिंग टू डैट एज वेल, राइट? नाउ दिस इज रिगार्डिंग द टर्न ओवर रेशो, एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। सो एक्टिव फंड्स विल बी हैविंग हायर टर्न ओवर रेशोज। चर्निंग बहुत ज़्यादा है इसमें, आपका पैसा, योर मनी विल बी रोटेटेड एंड दे विल बी यूजिंग योर मनी टू बाय एंड सेल, फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग। सी टर्न ओवर रेशो का मतलब एज अ नेम सजेस्टिंग यू टर्न ओवर। मैंने आज आई परचेज 100 शेयर्स, इफ टर्न ओवर रेशो इज लेस, तो योर शेयर्स आर स्टिल विद मी फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30 ईयर्स। आई विल नॉट टच दैट इज़ पैसिव। एक बार पैसा लगाया एंड भूल गया, आई जस्ट इन्वेस्टेड योर मनी एंड देन आई एम सिटिंग रिलैक्सड। बट इफ द फंड इज एक्टिव, what they will keep doing, they will take your money, invest your money, again sell the stocks, again buying the stocks, again selling. It is happening so frequently. So you tell by yourself guys, अगर इतना frequent है तो they have to pay brokerage charges, taxes as well. There are quite good number of losses as well. हाँ, there is a chance कि इतनी buying selling में they make insane amount of profits as well. But guys, mutual fund में हम invest क्यों करते हैं? Why do we invest in mutual funds? To take risk or to take stable returns? रिस्क ही लेना है तो डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा लो, देन यू शुड इन्वेस्ट डायरेक्ट इन द स्टॉक्स। व्हाट डू यू से? सो दीज आर एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सी आइडियल टर्न ओवर रेशो शुड बी लेस देन 100%। इफ इट इज़ मोर देन 100%, तो जो एक साल में आज म्यूचुअल फंड ने शेयर्स खरीदे थे आपके, ऑल द शेयर्स विच अ म्यूचुअल फंड हैड परचेज्ड टुडे, वो एक साल के अंदर बेच के फिर से नए खरीद लिए। मीन्स चर्निंग इज गोइंग ऑन, लगातार कॉन्टीन्यूस बाइंग सेलिंग इज गोइंग ऑन। Some mutual funds have 100%, 200%, 500% turnover ratio as well. अगर इतना ज़्यादा है तो एटलीस्ट रिटर्न तो ज़्यादा दो, एटलीस्ट यू शुड एक्सपेक्ट हाई रिटर्न्स। तो टर्न ओवर रेशो, सी गाइज, अभी हम उसमें फिर आएंगे। इट्स नॉट समथिंग विच वी हैव नॉट स्टार्टेड दिस
हम एक पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड खरीद के आई विल बी शोइंग यू, राइट. Direct and regular is done. Now, growth plan, IDCW and dividend reinvestment plan is also very important to understand. These are few concepts that would be coming on the way. ये आएगा ही आएगा and you should be knowing before we directly open the website. शार्प रेशो आने वाली गाइस, ये शार्प रेशो आ जाएगा आपका. बस ये इसके नीचे ये आपके रेशोज आएंगे सारे, अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेशोज, राइट. So don't worry, exit load amount per. See, exit load is having a time period. If that time period is exceeded, then you don't need to pay exit loads as such. And the terms and conditions, they vary in every mutual fund. Now, coming to growth plan. Achha, let me ask you, are dividends good, guys? Dividend अच्छी चीज़ है क्या? What do you think on this? Yes, no. अरे yes होना चाहिए था. Everyone is saying no. Oh no, never, no. Do mutual funds give dividends? What do you think? देखो, अब if you ask generally, are dividends good? See, dividends are not good as such. If I tell you very truthfully, guys, dividend होता क्या है? I am a company, I was making profits. मुझे लगा थोड़ा profit I should share with you. Is it a good thing? और instead वो profit मैं अपने expansion में लगाता. I should have used that profit for my own expansion. मैं और expand करता मेरा business और grow करता और share price ऊपर जाता, right? So dividends are not always good. It's not an absolute statement कि नहीं सर ने तो ऐसा बोला, गलत ही है. फ्री की चीज़ तो अच्छी होती है. वट एवर यू आर गेटिंग ऑन फ्री, तो इट्स गुड. अगर मैं आज इफ़ आई पे 10 रुपी टू यू, इट्स गुड, आपको अच्छा लगेगा. बट बीइंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, इफ समवन आस्क्स यू, तो डिविडेंड्स आर नॉट गुड. 1 लाख रुपया डिविडेंड स्टॉक्स में कमाने के लिए, टू अर्न 1 लाख रुपये डिविडेंड एवरी ईयर, यू हैव टू इन्वेस्ट 25 लाख रुपी इन द सेम कंपनी. सोचो, 25 लाख में तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट. सो डिविडेंड शुड नेवर बी अ होल एंड सोल मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Now, coming to second question, do mutual funds give dividend? Yes, they do give dividends. So we should invest mutual funds for the dividends? No. अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है. अब 3 तरह के प्लान्स होते हैं, और ग्रोथ प्लान, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, IDCW, मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. सो द गुड प्लान, द प्लान विच यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन, शुड बी ग्रोथ प्लान ओनली. ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन. अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड था. सृजन दत्ता इज आस्किंग डेट फंड विद डिविडेंड पे आउट. नो सृजन, एक तो डेट फंड 7% रिटर्न देगा, डिविडेंड कितना की मिल जाएगा, हाउ मच डिविडेंड दे विल पे यू, सो इट्स नॉट एडवाइजेबल. डेट फंड पहले एडवाइजेबल नहीं, डेट फंड इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल. सी यू कैन इन्वेस्ट, पर 5% 7% के लिए डू यू थिंक यू शुड बी इन्वेस्टिंग? इससे अच्छा तो FD में इन्वेस्ट करो, राइट. येस, आई एम कमिंग टू NAV गाइज. सो इन ग्रोथ प्लान क्या होता है, इससे पहले एक NAV का कंसेप्ट समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ आपको मैं. सी दिस 2 कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. आई एम ए म्यूचुअल फंड, आई टेक मनी फ्रॉम यू, मैंने आपसे पैसा लिया, राइट, और वो पैसा आई इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स. आपका तो कुछ नहीं गया, यू आर सिटिंग एट ए होम वॉचिंग TV एन्जॉइंग योर क्लास. दिमाग किसका लगा? माइन. रिसर्च की टीम किसकी है? मेरी. बिजली का खर्चा किसका है? इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा. हु इज़ डूइंग द रिसर्च? माई टीम. आई हैव टू पे देम सैलरीज. सो मैं वो पैसा कहाँ से लूँगा? हाउ वुड आई चार्ज दैट मनी? फ्रॉम एक्सपेंस रेशो, जो मैंने अभी बताया आपको. आई जस्ट टोल्ड यू नाउ. तो इफ़ यू गेव मी 1 लाख रुपी टुडे, आपने मुझे 1 लाख रुपये दिया फॉर एग्जाम्पल टुडे, तो उसमें से अगर एक्सपेंस रेशो वॉज 1%, तो 1 साल का, इन 1 ईयर आई विल बी चार्जिंग 1000 रुपी फ्रॉम यू, जो कटेगा ही कटेगा, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट्स, रिगार्डलेस ऑफ द लॉसेस. कल को मैं अच्छा म्यूचुअल फंड हूँ नहीं हूँ, इफ़ आई एम अ गुड म्यूचुअल फंड और नॉट, इफ़ आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज, रिगार्डलेस ऑफ डैट, आई विल बी चार्जिंग दिस 1000 रुपी. तो ये 1000 रुपी से पूरा साल, मतलब when this 1000 रुपी विल बी डिडक्टेड when you invest or when you withdraw? No, in both the cases ऐसा नहीं रहता है. It is deducted every day. This is a trick, guys. What happens?
I am investing money, your money, on your behalf, right? तो मेरा दिमाग, my efforts, my everything is mine. I need some money. That money will be charged from this expense ratio. And कल को ऐसा भी तो हो सकता है you invest more money. ऐसा आपने you were doing SIP 1000 रुपये every month. Then you put some lump sum amount. Then you again did SIP. तो बहुत confusing हो जाता है. So confusing for me, one thing. What if you invested your money and after 6 months you withdraw? Then तो मैं यही करता रह जाऊँगा. So what is done basically? This 1000 rupee, 1% of 1 lakh is 1000, for example. Divide it by 365 days. हर दिन, every day, I will be charging 2.5 rupee or 2.7 rupee from your account straight. जो 1 लाख रुपए आपने मुझे दिया था, whatever 1 lakh rupee you gave me, I will be charging 2 rupee every day straight. And जितना दिन आप उसको रखोगे, for how long you will be, how much time horizon you will be keeping your money with me, every day I will be charging that. Now, if this 1 lakh rupee grows, you had invested a 1 lakh rupee to me, it becomes 1 lakh 10,000. So I will be charging 1% of 1 lakh 10,000. If this becomes 90,000, then I will be charging this 1% on, not on 90,000 this time, on 1 lakh itself. मुझे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा regardless of I make profits or losses. I hope you are with me, guys. So this is expense ratio. What should be the right amount of expense ratio? That we are going to discuss. High expense ratio is also not good sometimes, right? Because your money, you are paying extra money to me. वो पैसा आपको अच्छे रिटर्न में मिल जाता. But sometimes high expense ratios are good as well. Because if you're paying me extra money, I will be more motivated. अरे मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है. I should hire more number of people. मैं ज़्यादा लोगों को नौकरी में दूंगा. I will make more people to work with me. More better research. There would be better people who will be working with me. So better research, better returns. So sometimes expense ratios are good as well. That we have to see practically. Now, expense ratio is the earnings of mutual fund because it is charged on the AUM. Means total money I collected from you. जितना भी पैसा मैंने आपसे लिया. For example, मैंने पूरी क्लास से, from the entire class I charged 1% rupee, 1% expense ratio. So this 1 lakh rupees my profit. इसी से मैं सैलरी दूंगा, इसी से मैं डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करूंगा, इसी से मैं अपनी सैलरी दूंगा. सो एक्सपेंस रेशो इज द प्रॉफिट्स एंड द अर्निंग्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड. अमन, आई एम कमिंग टू डैट. अमन शेख, बेंचमार्क भी मैं आई विल बी लेटिंग यू नो द बेंचमार्क. आई विल बी लेटिंग यू द रेशियोज एज वेल. जस्ट हैव सम वेट, आई हैव सम पेशेंस. हाँ, ओके. नाउ NAV, गाइस, NAV इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्योंकि अगर हमने ये ग्रोथ वाला प्लान समझना था, मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान एंड डिविडेंड प्लान, वी नीड टू अंडरस्टैंड द NAV. NAV इज़ द पर यूनिट प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड. कि म्यूचुअल फंड का एक यूनिट, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं ना, एक शेयर कितने का पड़ेगा सर, वैसे एक यूनिट म्यूचुअल फंड का कितने का पड़ेगा. दिस इज़ NAV, गाइज, राइट. सो the formula is again the number of units, the assets minus liabilities divided by number of units, but we are not going into that right now. NAV का मतलब होता है कि एक शेयर, एक म्यूचुअल फंड का यूनिट, what is the cost of that. So सी यहाँ पे लिखा रहता है. So this is NAV, right. So NAV is 109. So 109 का एक यूनिट म्यूचुअल फंड का मिलेगा. तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, यू रिसीव, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम ऐसा होता है कि सर मैंने 10 शेयर खरीदे, मैंने 15 शेयर्स खरीदे, ऐसा रहता है. सेम हैपन्स इन म्यूचुअल फंड. अच्छा, आपने SBI का म्यूचुअल फंड खरीदा, यस, तो आपको क्या मिला, समझे 10 यूनिट मिले, मुझे 15 यूनिट मिले. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो 10 यूनिट, एक यूनिट इज़ 109. यहाँ पे डेट लिखी रहती है. दिस डेट विल वेरी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. अब मैं बताता हूँ हाउ इट वेरीज. सी गाइज, NAV जो ओपन एंडेड का होता है, डेट इज़ कैलकुलेटेड एंड ऑफ द डे बट एवरी डे. ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें आप कभी भी पैसा डालो, कभी भी निकाल लो. जनरली लोग ओपन एंडेड में पैसा लगाते हैं, राइट. सो दिस टाइप ऑफ NAV इज कैलकुलेटेड एवरी डे. सो टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करती हैं इसमें. ना क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या रहता है, NAV इज कैलकुलेटेड एवरी वीकेंड, मीन्स एवरी फ्राइडे और मे बी ऑन एवरी सैटरडे, or maybe by the end of month, maybe on 31st or 30th. So these are closed ended mutual funds. तो इसमें आप
पता नहीं लगा सकते कि कब आपका NAV कैलकुलेट होगा, मीन्स इट इज़ ऑलवेज एट द लास्ट डे ऑफ द वीक और ऑफ द मंथ। तो आपको पूरा वीक वेट, पूरा मंथ यू हैव टू वेट फॉर 1 month 1 week to know the NAV values, right? Hedge funds are also types of mutual funds, but the limit of investment, minimum limit is very high. ये अमीरों के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। दे कैलकुलेट NAV मंथली, डैट टू मर्जी पे होता है ये। तो सो NAV कैलकुलेशन मर्जी पे रहती है। तो स्टॉक प्राइस जैसे ऊपर नीचे होता है ना कि आज स्टॉक 100 रुपये का है, 1 सेकेंड बाद 101 का। सो म्यूचुअल फंड में ये ऐसा नहीं रहता, इट्स नॉट इन द म्यूचुअल फंड गाइज। म्यूचुअल फंड में ये NAV जो कैलकुलेट होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड एवरी डे एंड एंड ऑफ द डे। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 18th, राइट? तो ये 16th को कैलकुलेट हुआ है, राइट? तो फ्राइडे को। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहती है, हमें म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये NAV हमको सस्ता मिले, एज चीप एज पॉसिबल। क्योंकि अगर ये 109 के बजाय 109 में आपको, लेट्स टेक राउंड ऑफ फिगर 100, आपने 100 का 1 यूनिट मिला। अगर यहाँ 50 होता तो आपको 2 यूनिट मिल जाते, यू वुड हैव परचेज्ड 2 units ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो कौन सा ज़्यादा कहाँ मिला? 2 यूनिट वाले में। आई होप everything is fine guys, right? So try to invest when the markets are low, right? Now coming to the topic again, Ujjwal, this is very wide topic, FNO, future and options. We will be studying in the coming classes. इसको बोलते हैं derivatives, and very risky thing. Don't invest जब तक knowledge नहीं है इसमें, straight away don't invest in this. So NAV जितना कम उतना अच्छा। Now coming to this thing, see guys, growth plan में क्या रहता है, NAV हमेशा increase करता है, right? And units same रहते हैं, AUM भी सेम रहता है या AUM ग्रो करता है इसमें। नाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में क्या रहता है, आई टुक मनी फ्रॉम यू गाइज, मैंने आपसे पैसा लिया, राइट? आई इन्वेस्टेड दैट मनी इन रिलायंस, इन अदानी और सम गुड कंपनीज, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक, और मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया। नाउ आई डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ द प्रॉफिट टू यू इन डिविडेंड्स, तो मैंने डिविडेंड्स में आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट गाइज डोंट यू थिंक उसमें मेरा पैसा कम हो गया? माई AUM वेंट लो। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो मैंने पैसा इकट्ठा करके आपसे लिया था, वट एवर मनी आई टुक फ्रॉम यू, दैट इज़ AUM। सो दैट वेंट वेरी लो, वो नीचे आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको पैसे फ्री में बांट दिए कि लो तुम भी रख लो प्रॉफिट, एन्जॉय योरसेल्फ। बट गाइज उससे मेरी इन्वेस्टमेंट में तो फ़र्क पड़ गया ना। कहाँ 1 करोड़ था मेरे पास पहले, आई टुक 1 करोड़ रुपये फ्रॉम यू, इन्वेस्टेड 1 करोड़ का, एक करोड़ 20 लाख हो गया, उसमें से 20 लाख मैंने आपको दे दिया, या 30 lakhs, मेरे पास तो क्या बचा 90 lakhs। मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी। सो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स आर नॉट गुड, मीन्स जिसमें डिविडेंड मिलता है, दैट दोज प्लान्स आर नॉट गुड। इसमें क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, AUM डिक्रीजेज, एंड इफ AUM डिक्रीजेज NAV विल बी ऑलवेज लेस। इसमें NAV आपको हमेशा कम मिलेगा गाइज। तो यहाँ पे बहुत लोग दे गेट कन्फ्यूज्ड। देखो मैं आपको बताता हूँ हाउ। जब आपको कोई बेचने के लिए आएगा म्यूचुअल फंड, व्हेन अ पर्सन विल कम टू सेल यू अ म्यूचुअल फंड, गाइस प्लीज़ राइट इट डाउन। वो आपको क्या बोलेगा, एक तो बोलेगा सर देखो आपको डिविडेंड मिलेगा, कोई इंसान खुश हो जाएगा। दूसरा, सर देखो यहाँ पे NAV इतना सस्ता है, आपको यहाँ पे यूनिट्स बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। जहाँ आपको ग्रोथ प्लान में 1 यूनिट 100 का मिलेगा या 50 का मिल जाएगा, आप फिर खुश हो जाओगे, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। बट गाइज इन रियलिटी जो डिविडेंड प्लान्स होते हैं, दे गिव वेरी लेस रिटर्न्स, वहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग कम्स ओवर हेयर, मैं म्यूचुअल फंड था, अब यहाँ पे अमन ने म्यूचुअल फंड कल खरीदा, डे बिफोर यस्टरडे, एंड उज्ज्वल परचेज दिस 10 years बैक, तो अमन को भी मिल गया डिविडेंड, उज्ज्वल को भी मिला। तो उज्ज्वल का बेचारे का क्या हो रहा है इतने 10 साल वेट करने का? मीन्स देर इज़ नो रिस्पेक्ट टू द ओल्ड इन्वेस्टर्स। सो इफ़ समवन आस्क्स कि सर डिविडेंड वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, सो इट्स अ कंप्लीट नो, यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस। रिटर्न्स वुड बी लेस, NAV की ग्रोथ नहीं होगी, NAV कम ही रहेगा, राइट? एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड डिक्रीजेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट AUM विल ऑल्सो डिक्रीज। गाइज एनी डाउट्स टिल नाउ? अमन फील फ्री टू आस्क द डाउट्स, क्योंकि बेंचमार्क वाले में मैं फिर से आना था, तो मैंने आपको कहा था उस टाइम में।
Sir, is it true dividend given reduce the? Absolutely, this is what I'm saying. Na? NAV will be less. It will reduce the NAVs. Dividend दूंगा तो AUM will go down, and because of this decreased AUM, NAV will also become down. Guys, with me? Everybody's with me? Any doubts? Huh. You, yes, Swaran Shekhar Datta, very good. SWPs would be much better than dividend plan. Guys, these are tactics of selling the mutual fund straight away. आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो डिविडेंड सुन के कोई भी खुश हो जाएगा. नाउ वन मोर प्लान इज दैट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे क्या कर रहा है म्यूचुअल फंड, व्हाट दे आर डूइंग, द प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग, दे आर नॉट गिविंग द डिविडेंड. तो सर ने तो कहा था डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग स्मार्ट. दे आर नॉट गिविंग यू डिविडेंड्स, दे आर गिविंग यू नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स्ट्रा. बोनस नंबर ऑफ शेयर सुने आपने, बोनस शेयर्स मिलते हैं कि दिवाली का बोनस मिल गया, 1:1 बोनस मीन्स 10 शेयर थे, 10 के 20 शेयर्स हो गए. सो म्यूचुअल फंड्स में भी यूनिट्स गिफ्ट दे देते हैं कई बार, वो दे गिव यू यूनिट्स एज गिफ्ट, बट अगेन इट्स नॉट एडवाइजेबल. डोंट इन्वेस्ट इन सच प्लान्स. Why I am saying this? Because even if they are giving you number of units, this will decrease the AUM and which will further decrease the NAV. Guys, I hope this is clear. तो अभी तक जो आपको इन्वेस्ट करना है, अमन फंड और ETF आएगा, ETF आएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट. नाउ गो स्टेप बाय स्टेप गाइज. तो अभी तक अगर ऐसे 3 प्लान आते हैं तो इसमें से ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करना है. ओनली इन्वेस्ट इन ग्रोथ प्लान्स. Try to avoid these 2 plans. Guys, everybody is with me till now. Swaran Shekhar is also saying the same thing. Guys, I have people around me who are sellers of mutual funds. मुझे पता है how they trick people. Even I have people around me who are from this LIC background. तो वहाँ पे मुझे पता है, I know how people trick others. Now let me show you it over here guys. ये direct plan है. अब मुझे आप बताओगे guys, should I buy this plan? Yes or no? Let me highlight this thing. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? One is direct plan, but ये कुछ लिखा रहा है यहाँ पे. What is this guys? Now you will tell me. Should you invest in this? मैं तो कर लूँ. What do you say? You should invest. Very nice. Yes, you should not invest in this plan. Why? Because this is dividend plan. ये कौन सा प्लान था? ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, है ना. अब इसको पीछे चलते हैं हम लोग. ये देख लो, यहाँ पे सेम प्लान है, 2 सेम नेम्स, सब कुछ सेम है यहाँ पे गाइस. आई वांट यू टू जस्ट सी. AUM कितना है? 68,000 करोड़. 68,000 करोड़, ठीक है. नाम भी सेम है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड. ये वाला प्लान कौन सा है? ग्रोथ प्लान. ये वाला कौन सा है? डिविडेंड प्लान. यहाँ पे पीपल डोंट रीड द टर्म्स. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. जो पढ़ा होगा वो ग्रोथ वाला ले लेगा और बेचारा कोई इसको लेके फंस जाएगा. सो सेम म्यूचुअल फंड्स, सेम AUM, सब सेम है. यहाँ पे इनका फंड मैनेजर भी सेम होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम. NAV भी सेम होगा. इफ आई टेल यू, लेट मी ओपन दिस वन एज वेल, एवरीथिंग वुड बी सेम, जस्ट रिटर्न्स कम आ जाएंगे बस. लेट मी शो यू. NAV इज दिस, NAV इज दिस. देख लो, इसका NAV इज 63. इसका NAV हमेशा कम ही रहेगा और यहाँ पे NAV इतना ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा गाइज. यहाँ पे रिटर्न्स देख लो, हमेशा कम ही रहेंगे, 7% रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न्स हमेशा 12 से 15% ही रहेंगे गाइज. सो दिस प्लान इज़ नॉट गुड गाइज. आई होप यू आर विद मी एवरीबडी. I hope you are liking the session and I hope you are not getting bored. Guys, you should be knowing these things. This is very, very important. Trust me. Okay. अब आते हैं कुछ और टर्म्स जो कि हमें बहुत काम आने वाली है. These terms are again very important. So अभी तक the things are there कि we should be investing in direct plans, we should be investing in growth plans. Now इसमें क्या करें सर? अब यहाँ पे आते हैं again. ये चीज़ों का आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? व्हेन विल यू गेट दीज बेनिफिट्स? जब हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको खरीदेंगे, व्हेन वी विल बी बाइंग दिस. जैसे यहाँ पे आते हैं, अब मैं बोलूँ चलो खरीदो. सो यहाँ पे हमारे पास देखो इक्विटी में आ गया लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टीपल, सेक्टोरल. हमने सिर्फ इक्विटी वाले में लेना है पहले, बाकी तो सारे मैंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं. फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा. सो विच वन इज़ गुड? सबसे पहले इक्विटी डिविडेंड, नो, नहीं लेंगे हम. जहाँ डिविडेंड आएगा we will not invest. Can you check Axis Growth Fund?
ओके, वी विल बी डूइंग दैट तरुण. लेट मी सी कितना टाइम रहता है हमारे पास. टाइम इन है, वी हैव टू सी द टाइम एज वेल. आई हैड टू कवर वन मोर टॉपिक टुडे, बट मुझे ऐसा लगा कि यू शुड बी नोइंग दीज कंसेप्ट यार, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ इक्विटी लार्ज कैप मतलब ये म्यूचुअल फंड सिर्फ बड़ी कंपनी में पैसा लगाएगा. दिस म्यूचुअल फंड वुड बी इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिग कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज. तो सर इज़ इट गुड? इट इज़ गुड एंड इट इज़ स्टेबल. रिस्क कम है, रिस्क इज़ लेस. रिटर्न्स वुड ऑल्सो बी रिस्क, बिकॉज रिटर्न कब होते हैं ज़्यादा? व्हेन रिस्क इज़ हाई. सो यहाँ पे रिटर्न्स आर लेस, सो बिकॉज रिस्क इज़ लेस. ऑलराइट. हाँ, ELSS I will be coming. Mid cap, normal companies who are in mid cap, their market cap is in the middle. That we are going to see what is mid cap companies in the later class. But अभी ये देख लो, ये बीच की कंपनी रहती है. Then comes multi cap. These mutual funds will be investing in all the equity, small cap, mid cap, large cap. Return थोड़े ज़्यादा हैं, but risk is also high. Now comes the sectoral funds. Sectoral funds are those funds who invest in specific sector. It could be IT sector, it could be pharma sector, it could be infrastructure. But guys, the thing is that mutual fund में हम क्यों invest करते हैं? To have better diversification. ये म्यूचुअल फंड सारी जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है, राइट. एंड अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये है, 500 रुपये से आप क्या शेयर खरीद लोगे? इफ़ यू ओनली हैव 500 रुपी, वट कैन यू बाय फ्रॉम दैट 500? बट यू कैन बाय टॉप निफ्टी कंपनीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड. तो अगर पैसा कम है तो वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट, राइट. सेक्टोरल फंड में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज वट इफ़ अ नेगेटिव न्यूज़ कम्स फ्रॉम दैट सेक्टर, गवर्नमेंट इम्पोजेज सम टैक्सेस ऑन दिस सेक्टर, or maybe Donald Trump sitting in America imposes some tariff on this sector, the entire mutual fund will crash. हाँ, इसमें इन्वेस्ट कब कर सकते हैं? when you can invest in this when you think something related to this is going to happen in future. जैसे कोविड क्राइसिस आ रहा था, when COVID crisis was coming, right, only pharma companies were doing good. तो तब किसी ने ये वाला लिया होता, his money would have been grown in a very good way. तो आपको ये देखना है कौन सा सेक्टर इज़ डूइंग गुड और मे डू गुड इन फ्यूचर फर्स्टली. बट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ़ समथिंग बैड हैपन्स इन दैट सेक्टर, बिकॉज ये क्या करेगा, ये उसी सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगाएगा. मीन्स दिस म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट इन द कंपनीज ऑफ दैट सेक्टर ओनली. सो देर इज़ अ चांस that if something bad happens with that sector, entire mutual, because the shares will collapse and the mutual fund will also collapse, your mutual fund will be in red, in losses. So that is why it is not advisable till now. But now equity में आपको choice है, there is a choice that you may invest, right. So sectoral funds are pharma, technology, energy. So these are the mutual funds who invest only in pharma, they invest only in technology, they invest only in energy, they invest only in international companies like Disney हो गया, जितने Amazon, Netflix. You can invest in these if you are really interested to invest in foreign companies like that. So these are sectoral funds. I hope this is clear to everybody. But there are some values like these are some funds like value, contra, quantitative. These are few terms which you need to understand, right. ये चीज़ का आपको बेनिफिट एक और जगह आने वाला है गाइज. आई वॉन्ट यू टू फोकस ओवर हेयर प्लीज़. देखो, अब जब आप खोलोगे, प्लीज़ ट्राई टू ओपन दिस एज वेल व्हेन यू आर फ्री एट योर होम, रूपी वेस्ट. व्हेन यू स्क्रोल डाउन, यहाँ पे देखो स्टॉक्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स, राइट, कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं. लेट्स क्लिक ओवर हेयर. You have not done anything in equity research yet, right? So why can't we see the shares with mutual funds are buying? देखो, हमें तो पता नहीं होता है कि कहाँ पैसे लगाने चाहिए, पर म्यूचुअल फंड को तो पता है. Why? Because mutual fund are having teams of people who are doing research. So you can see in the month of April, these are the companies, mutual funds, all the mutual funds of the India, for example, they had invested in their money. तो इससे आपका थोड़ा सा इक्विटी रिसर्च का काम कम हो जाएगा. दिस विल डिक्रीज द प्रेशर टू एनालाइज ऑल द कंपनीज. व्हाई डोंट वी एनालाइज दीज कंपनीज ओनली? दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट. सी वेयर द म्यूचुअल फंड्स ऑफ द कंट्री आर इन्वेस्टिंग द मनी, बिकॉज दे डोंट इन्वेस्ट वन और दे डोंट बाय 1 or 2 शेयर्स. दे जस्ट सी यहाँ पे कितना. दिस इज़ द क्वान्टिटी गाइज. इन्फोसिस का व्हाट इज दिस क्वान्टिटी?
1,98,00,000 shares of this had purchased. राइट, रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? हर्ष, रिट्स इंडिया में ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, टू बी वेरी ट्रूथफुल, सो अवॉइड, रिटर्न्स वुड बी लेस, फ्यूचर का भी पता नहीं आफ्टर सम टाइम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक TMT वाज अ गुड चॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्री। सृजन, व्हेन वी विल डू इक्विटी रिसर्च आई विल लेट यू नो। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में ना थोड़ा दिक्कत रहती है, फॉर अ कंट्री लाइक अस इज़ गुड, बट रियल एस्टेट में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज, दे हैव ह्यूज डेट ऑन देम, राइट? सो कैन यू शो हाउ टू गेट दिस पेज सर? हाँ, यू गो ओपन रुपी वेस्ट एंड यहाँ पे टूल्स में जाओ एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्क्रीनर है, इसके नीचे आएगा स्टॉक्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड्स, ये देख लो। व्हेन द स्टॉक सेक्टर इज बीटन डाउन, हाँ, it is a good thing. When the stocks of the sector are down, you can invest. See, sectoral investment, वो personal choice है. I just told you the reasons why you should not invest, but you can invest as well. That is a personal choice, guys, right? Certificate of what, Aman? Okay, now one more thing. हर म्यूचुअल फंड, जैसे ये वाला म्यूचुअल फंड था, एवरी म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स द नंबर ऑफ स्टॉक्स दे आर इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो। अब आओ एडवाइज़र खोज में, यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में क्लिक करोगे, व्हेन यू विल बी क्लिकिंग एनी ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स, सो व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन, राइट, दे विल बी गिविंग द नंबर ऑफ लिस्ट ओवर हेयर, सो यू कैन सी कहाँ पे म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल गाइज, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉन्ट्रा फंड्स आर दोज फंड्स हु इन्वेस्ट ऑपोजिट टू द मार्केट. कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं, ये वो शेयर्स खरीदते हैं जो कोई नहीं खरीदता. सब सोचते हैं ये तो बहुत, nobody has this thought in their mind कि they can grow in future. So these are those mutual funds who go opposite to the crowd. Momentum funds are those funds who break lifetime highs. Means कोई म्यूचुअल फंड पिछले 4 सालों से 50 रुपये में था एंड ऑल ऑफ सडन आफ्टर 5 years or 6 years it breaks and becomes 70 rupee. So they will be buying such funds. They will be keeping eye on such funds. वैल्यू म्यूचुअल फंड्स और वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक. जो अच्छी कंपनीज खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, दे बाय गुड कंपनीज बट एट वेरी वेरी लेस प्राइजेस. मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जोमेटो का अगर एग्जांपल लूँ, जोमेटो इज़ अ वेरी एडवर्टाइज्ड कंपनी बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फाइनेंशियल्स ऑफ जोमेटो इज़ नॉट गुड. तो जोमेटो अगर 500 रुपये का है, इट मीन्स दैट इज़ ओवर वैल्यूड. This was example number 1. Now let's see example number 2. Example number 2 could be Motilal Oswal. Motilal Oswal का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन इज़ अराउंड 60%. शेयर प्राइस है बेचारा 300 400 500 रुपये का, यू नो, इट्स वेरी वेरी लेस. इट मीन्स सस्ता मिल रहा है पर बिजनेस अच्छा है. सो वैल्यू इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स जो सस्ते शेयर्स खरीदते हैं लेकिन द कंपनीज विच आर डूइंग गुड, दे शॉर्ट लिस्ट दोज कंपनीज. तो ये मैंने आपको क्यों बताया गाइज, इस चीज़ को आप यूज़ कहाँ कर सकते हो. सर्च दीज म्यूचुअल फंड्स, इन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढो एंड सी वेयर दीज म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, ताकि आपको भी कई बार शेयर्स ढूंढने में आसानी हो जाए. अगर आप वैल्यू म्यूचुअल फंड्स ढूंढोगे, सी वेयर दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड यूज़ योर ब्रेन, आप अपना स्टॉक्स वैसे खरीद लो. सो वहाँ पे भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो जाता है, राइट. आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर to you. ETF guys, we are going to discuss in the coming class ETF and index investing. ये हो गया. Now अमन का क्वेश्चन था कि सर अब फैक्ट शीट और बेंचमार्क समझा दो. So I am coming to that as well. सबसे पहले अमन को मैं ये बता देता हूँ. See how it works guys. These are important parameters. ये पैरामीटर्स हमें कहाँ पे काम आएंगे. See हम ना ये सारी की सारी जो नॉलेज अभी हमने we had collected, we are going to apply it over here. अब हमने लार्ज कैप फंड यहाँ पे किया, we found a large cap fund over here. ठीक है, ओके. टाइम इज़, you know, whenever I try to teach, मैंने सोचा था आज I will complete all the topics. So let's apply these ratios over here guys. Right now it will make things easier for you. ये कुछ रेशोज़ हैं यहाँ पे गाइस, अल्फ़ा, शार्पे, सॉर्टिनो, बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन.
Now I want you to just focus for just a moment. बीटा याद रखने का तरीका, आई विल गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर एज वेल. बीटा, द इनिशियल इज वी. V is for volatility, V is for beta and V is for Vega as well. Vega हम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, पर मेरे ट्रिक याद रखना, V से वॉलेटिलिटी, V फॉर वॉलेटिलिटी. सो V इज़ फॉर Vega. सो फ्यूचर ऑप्शंस में Vega का मतलब होता है वॉलेटिलिटी. नाउ कीप दिस थिंग असाइड. स्टॉक्स में बीटा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी मतलब कितना ऊपर जा सकता है शेयर, ऊपर नीचे मीन्स व्हाट इज़ द फ्लक्चुएशन. So ज़्यादा volatility could be good but could be bad as well. Wow, why so? Volatility means risk, guys. Higher the beta, right? Higher the volatility, higher the risk. Risk ज़्यादा का मतलब है returns could also be high, but returns could also be less because risk ज़्यादा है. So if beta is less than 1, it is less risky. Beta is more than 1, it is more risky. Guys, I hope you are with me, everybody. I want you to focus please for just 2 or 3 minutes. Don't ask doubts. अभी सिर्फ focus कर लो. Standard deviation. Just use the English word over here. Standard and deviation means अगर हम ज़ीरो को सेंटर पॉइंट माने, if we consider zero at center point, it can go, if it is 12%, okay, so it can go plus 12, but it can बिकम -12 एज वेल. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रास्ता कितना भटकता है, हाउ मच इट गेट लॉस्ट ऑन द वे. अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, इफ़ यू हैड परचेज 100 रुपी शेयर और NAV ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ 100 रुपी फॉर एग्जाम्पल, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 12%, इट मीन्स वो शेयर 112 भी हो सकता है. इट इज़ अ गुड थिंग. 100 का 112, बट वो शेयर 88 में भी आ सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है. मतलब रास्ता कितना भटकता है, इंग्लिश वर्ड. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब भटकना. ना अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा मेल्स. यू माइट हैव हर्ड, nowadays this term is very much in use in your generation. Alpha male and alphas and all. Alpha is something, how much returns and how much good it can bring, right? Now let me give you an example, guys. See the numbers over here. यहाँ पे बीटा इज़ 0.9, बीटा इज़ 0.8 एंड बीटा इज़ 1. ठीक है. अल्फ़ा इज़ 4, अल्फ़ा इज़ 4, अल्फ़ा इज़ 4 फॉर ऑल द केसेस. आई होप एवरीवन इज़ विद मी, राइट? अब मुझे बताओ, अल्फ़ा मतलब रिटर्न. जितना ज़्यादा अल्फ़ा होता है उतना अच्छा होता है. हायर द अल्फ़ा बेटर इट इज़. लोअर द बीटा लेस रिस्की, हायर द बीटा मोर रिस्की. तो सर बीटा कम होगा तो अच्छा, बीटा ज़्यादा होगा तो अच्छा. व्हाट इज़ बेटर? ज़्यादा बीटा है तो ज़्यादा रिस्क है. यू शुड बी एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न्स, बट रिस्क इज़ ऑल्सो हाई, सो लॉसेस कुड ऑल्सो बी देयर. लेस बीटा मीन्स लेस रिस्की, थोड़ा रिटर्न कम हो सकता है. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप समझ गए, रास्ता कितना भटकता है, ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी. तो यहाँ पे इफ़ आई टेल यू गाइस, सबसे कम रिस्क लिया है 8.8 वाले बीटा ने, लेकिन रिटर्न 4 ही प्रोड्यूस किया, राइट? सबसे ज़्यादा रिस्क लिया इस वाले बीटा ने 1, बट रिटर्न अगेन 4 ही प्रोड्यूस किया. ना आप कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं यार? कम रिस्क में भी 4 मिल रहा है, ज़्यादा रिस्क में भी 4 मिल रहा है, तो वाई नॉट गो विद 0.8? जितने कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिले, दैट इज़ बेटर. ये चीज़ें हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं. दीज रेशोज़ आर यूज इन कॉम्बिनेशंस ओनली, इन कंपैरिजन्स. ऐसा नहीं रहता है कि इस वाले म्यूचुअल फंड का बताओ. इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे PE रेशो होता है ना, PE रेशो इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन गाइज फॉर कंपैरिजन, मल्टीपल को रिलेट करने के लिए, राइट? नाउ अब इस वे में ये यूज़ होगा. नाउ शार्पे रेशो एंड सोर्टिनो रेशो, इसका एक फ़नी रेशो बताता हूँ. ऐसे फॉर्मूला में अभी नहीं जाएंगे, पर एक फ़नी आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ. एक बच्चा है, देयर इज़ अ चाइल्ड, जिसको एक थप्पड़ पड़ा, ए स्लैप. योर जनरेशन इज़ वेरी लिबरल जनरेशन, योर पेरेंट्स वर वेरी लिबरल. आपको कभी मार नहीं पड़ी होगी, राइट? किसी को पड़ी है तो बता दो. पर मुझे तो आई डोंट थिंक योर जनरेशन हैव एवर सीन स्लैपिंग फ्रॉम पेरेंट्स और मदर एंड फादर, बट हमारे टाइम में तो रहता था, ठीक है? एक चांटे से कितने नंबर कोई बच्चा ला सकता है? एज सिंपल एज दैट. इफ़ आई एम स्लैपिंग माई चाइल्ड, जस्ट इमेजिनरी, राइट, हाउ मच मार्क्स ही कैन ब्रिंग फ्रॉम 1 स्लैप? एज सिंपल एज दैट. मतलब एक रिस्क उठा के कितना रिटर्न आ सकता है.
अब मुझे बताओ, एक बच्चा था, देयर इज अ चाइल्ड, ही स्कोर्ड 10 मार्क्स, राइट, जस्ट इमेजिन 10 मार्क्स, बट उसे पड़े 2 थप्पड़, 2 स्लैप्स फॉर 10 मार्क्स. देयर वॉज अनदर चाइल्ड हु स्कोर्ड 20 marks from one slap. Which one is better? मेरे ख्याल से जिसको एक पड़ा, वन स्लैप एंड गॉट 20 मार्क्स, दैट वॉज बेटर. ज़्यादा मिल गया, राइट. सो वेन एवर दिस सोटिनो रेशो इज़ हायर, इट इज़ बेटर. मतलब कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न, कम स्लैप से ज़्यादा मार्क्स, यू नो, एक थप्पड़ से ज़्यादा नंबर आ गए. और किसी को 10 थप्पड़ पड़े तब भी पास नहीं हुआ. मीन्स व्हेन यू, just for an example guys, right, I hope you will relate it. If you slap a child, how many marks he can get in the exams? More number of slaps, less returns, or less slap, more returns. So how much return you can expect from one unit risk? Unit risk मतलब एक खतरा उठा के कितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला सकता है. That is Sharpe and Sortino both. So what is the difference? Sortino is better version और evolved version of Sharpe ratio. ये वाला बेटर है, दोनों को देख लेना. बट अगर फाइनल देखना हो तो Sortino ही देखा जाता है. नाउ कमिंग टू दिस, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे. नाउ यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ वैसे तो इन लोगों ने रेटिंग्स दी हैं. यू विल गो म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एसेट लगा दिया, इक्विटी लार्ज कैप, राइट. नाउ सच काइंड ऑफ रेटिंग्स वुड कम. Now guys, if I take 20-30 minutes extra, would that be fine to you? Or are you really occupied today? Because I really want to complete it. जो थोड़ा बहुत बचेगा we'll complete next week, but I want to complete this thing today, right? All right guys. Anybody who is having a class or who is working in office today, or is having a movie day out, so you can let me know guys. Yeah, all right. So सबसे पहले अब ये सारा कुछ हम अप्लाई कैसे करने वाले हैं. सो वी हैड डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स टिल नाउ. टैक्स का हम थोड़ा सा कर लेंगे मे बी दिस वीक, रिटर्न्स का भी आपको पता है लगभग. नाउ ऑल द थिंग्स आर डन. नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे अप्लाई ओवर हियर गाइज. एग्ज़ाम है, हम सभी में एक ही तरह का लगाएंगे. सो इक्विटी लार्ज कैप सबमिट, ठीक है. इसमें भी इक्विटी लार्ज कैप ही लगाया हुआ है, राइट, इक्विटी लार्ज कैप, एंड इसमें भी इक्विटी लार्ज कैप ही है, सो डैट इट बिकम्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ईजी टू अंडरस्टैंड रिसर्च. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है गाइज, आई वॉन्ट यू टू फोकस नाउ. दैट्स नॉट द प्रेडिक्शन, दैट्स द स्पॉइलर. ओके, ऑल राइट गाइज, कमिंग टू द पॉइंट. सी, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, वैसे तो इन्होंने रेटिंग्स दी हैं, बट दीज रेटिंग्स शुड नॉट बी सीन एज, just a minute. See guys, Amit, good question. Sortino focuses on downside and upside. There are two things, but we are not going into the formulas right now. We are just trying to relate it कि हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. Once we will be discussing CFA quants over here, उसमें returns के formulas and formulas of these things will be discussed. But I want you to, this class should be a practical class, everybody. All right, Amit. चलो, सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे AUM गाइज. हायर द AUM बेटर इट इज़, एज सिंपल एज दैट. फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च वुड बी ट्राई टू सी जितना ज़्यादा AUM हो उतना अच्छा हो. वाई आई एम सेइंग दिस, हायर AUM मीन्स पीपल ट्रस्ट दिस थिंग, राइट, मोर ट्रस्ट. और जो छोटा AUM ऐसे यहाँ पे इतने छोटे छोटे भी हैं, एक हम छोटा वाला भी खोल के रख लेते हैं फॉर वन शुड बी वर्स, वन शुड बी बेटर. तो ये बुरा वाला सिंगल स्टार म्यूचुअल फंड एंड हाई स्टार म्यूचुअल फंड दोनों हमने खोल के रख लिए, राइट. सो AUM शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. तो यहाँ पे ICICI का हाई था, SBI ग्रोथ प्लान, G मीन्स ग्रोथ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. निपॉन इंडिया, दिस इज ऑल्सो हाई. Mirai is also doing good, so let's see. So 68,000 crore, 51,000 crore, 39,000 crores, right? Now expense ratios. Now
अभी हम ये रेशोज़ थोड़ा साइड करते हैं बिकॉज वी आर अभी हमें रिटर्न्स, वी नीड टू सी द रिटर्न्स फर्स्ट गाइज, 3 years, 5 years, 10 years. Now the second criteria that is again very important criteria would be number of years. कोई भी म्यूचुअल फंड आप खरीदोगे, दैट म्यूचुअल फंड शुड हैव अ लाइफ ऑफ 10 years एट लीस्ट, 7 to 10 years. नया म्यूचुअल फंड कभी मत लो, NFO कभी मत लो. NFO means when the mutual fund is just launched. Don't buy that because you never know mutual fund कब बंद हो जाए, you never know when it get into a fraud, you never know how that will perform. You don't have the historical data, but over here there is a historical data. So 10-year mutual fund is important. अब यहाँ पे यहाँ पे तो नंबर्स आ गए, बट हम इस नंबर्स का क्या करें, हाउ व्हाट शुड आई डू. सो यहाँ पे भी हमने ये खोल के रखा था, सी द कैटेगरी एवरेज. ये एडवाइज़र खोज में मिल जाएगा. इस कैटेगरी में कितनी एवरेज मैं एक्सपेक्ट करूं, मींस 10 years 12%, 22%, 18% एंड 13%. सो दिस कैटेगरी एवरेज आई शुड बी नोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे वी नीड टू सी, अच्छा 10 साल का 14% दिया है, कैटेगरी एवरेज वॉज व्हाट वाज दिस, इट वॉज 13%. मीन्स यस डेफिनेटली कैटेगरी की एवरेज को इसने क्रॉस किया था. बाकी इसने नहीं किया था ब्लू चिप वाले ने. सिमिलरली दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज यहाँ पे इट वॉज 22% एंड इट इज़ ओवर है 26%. इट आउट परफॉर्म्ड. तो हमने क्या देखना है, सेकेंड स्टेप वुड बी सी 5 years 10 years रिटर्न्स. इट शुड बी हायर देन द एवरेज ऑफ द एंटायर कैटेगरी. जैसे होता है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयर्स की कितनी PE रेशो है, सबकी देखी जाती है, या एवरेज रिटर्न्स देखी जाती हैं. सिमिलरली म्यूचुअल फंड में यू हैव टू सी द एवरेज रिटर्न्स. दिस इज़ द सेकंड स्टेप यू हैव टू सी. अभी तक हमने एक्सपेंस रेशो देखा भी नहीं है, क्योंकि वी नीड टू फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट अ गुड म्यूचुअल फंड, राइट. एक्सपेंस रेशो तो बाद में वी विल सी. नाउ कमिंग टू अ पॉइंट कि मैंने आपको पहले बता दिया, इफ़ आई बाय अ डायरेक्ट प्लान इट विल बी हैविंग लेस एक्सपेंस रेशो. अगर मैं सेम प्लान यहाँ पे खोलता हूँ, डायरेक्ट प्लान, Zerodha is good. I'm not promoting Zerodha. It's just because Zerodha ने यहाँ पे सारे कम से कम all the plans are direct plans. यहाँ पे आपका expense ratios will be less. Instead you are buying it from It's 2 somewhere. o'clock. I hope this is also clear, right? Now let's open a good one and a bad one. This was ICICI Prudential. ये था and ये था. So these were the funds. अब यहाँ पे गाइस, अब यू विल बी टेलिंग मी, क्योंकि हमने एक बेस रेडी कर लिया है. ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का मतलब होता है बिग कंपनीज, जी का मतलब होता है ग्रोथ फंड, मीन्स ये डिविडेंड वाला फंड नहीं है. इक्विटी लार्ज कैप मीन्स ये स्टॉक्स में ही पैसे लगाएंगे, डेट टू इन लार्ज कैप. लार्ज कैप वुड बी हैविंग 80% शेयर, तो 80% पैसा ये लार्ज कैप में लगाने वाले हैं. दिस गाय इज़ द फंड मैनेजर. फंड मैनेजर मीन्स जो आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा. अब ये चीज़ देखना भी ज़रूरी होता है. क्लिक इट ऑन दिस नेम, विंडो ब्रोकर, कि ये इंसान, दिस मैन हु इज़ अ फंड मैनेजर, ये कितने फंड संभाल रहे हैं. कहीं ऐसा ना 10-15 फंड संभाल रहे हो. मीन्स अ फंड मैनेजर कैन बी हैंडलिंग मल्टीपल फंड. सो दिस गाय इज़ हैंडलिंग 1 2 3 4 5 फंड्स. अगर ये 1 या 2 या 3 फंड संभाल रहे होते तो मतलब जस्ट इमेजिन गाइज, आपके हाथ, आप एक काम अच्छे से कर सकते हो या 5 काम. सो इट्स बेटर लेसर द नंबर ऑफ फंड्स ही इज़ हैंडलिंग, बेटर द फंड वुड बी. चलो 5 को हम रख लेते हैं, बट देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स जो बहुत ज़्यादा हैंडल करते हैं. हम जैसे इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे दिस इज़ द फंड मैनेजर. इफ़ आई क्लिक ओवर हेयर, क्लिक कैन यू ब्लॉकर, oh my god, so this guy is handling 1 2 3 4 5 6 7 funds. So try to see जो फंड मैनेजर हैं, अब इसका फंड मैनेजर 7 फंड्स को संभाल रहा है, एंड फॉर दिस वन ही इज़ हैंडलिंग 5 फंड्स. वेयर डेट गो, वेयर डेट इट गो. आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी, राइट. दिस इज NAV एंड दिस इज इट्स NAV, राइट. इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, विल सी. ही यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इज 2.3% गाइज, तभी पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस. 2.3% इज़ द एक्सपेंस रेशो, एंड यहाँ पे इट्स 1.43. एंड अगर इसको आप ज़ेरोदा से खरीदोगे इट वुड बी अराउंड 0.8 और समथिंग, तो वहाँ पे और कम हो जाएगा आपका एक्सपेंस रेशो. अब यार टर्न ओवर रेशो इज़ 16%, ये मैंने आपको बताया था. मीन्स
अगर इनके पास आपके 100 शेयर्स होते हैं उसमें 16 ही शेयर ये ऊपर नीचे करते हैं, मीन्स क्वाइट स्टेबल फंड। यहाँ पे इट इज़ 40%, और यहाँ पे और भी मैंने खोल के रखे थे 64%, इसके अलावा 27%, सी 43%। देयर आर सम म्यूचुअल फंड जो 60% में भी हैं, देयर विल बी सम म्यूचुअल फंड हु विल बी मोर देन 100% एज वेल। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, लोअर इज़ बेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दे विल बी डूइंग ट्रेडिंग एटलीस्ट, वो आपके तो शेयर खरीदते बेचते रहेंगे एक तरह से। एग्जिट लोड गाइज इट वेरीज, जैसे यहाँ पे दिया ना एग्जिट लोड, ये देखो एग्जिट लोड 1% इफ़ रिडीम्ड अप टू 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले आपने अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला देन दे विल चार्ज 1%, इफ़ नॉट तो आप निकाल, अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो, इफ़ यू आर रिडीमिंग आफ्टर 1 ईयर इट्स फाइन, नो वरीज एट ऑल, तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। टर्न ओवर रेशो का मतलब होता है यश, मीन्स आपसे मैंने पैसे लिए, म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड एक जगह लगा के चुपचाप रख छोड़ता है, मीन्स दे इन्वेस्ट योर मनी एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, और दे आर बाइंग शेयर्स अगेन सेलिंग इट, दे आर अगेन बाइंग, मतलब 1 साल में अगर 40% है तो 40% शेयर बाय सेल कर चुके होंगे। अगर 100% है तो आप जो पैसे से शेयर खरीदे वो एक बार खरीद के फिर बेच के फिर खरीद लिया, और अगर वो 100, 200, 300, 400, 500% है, इट मीन्स आपसे पैसे लिए, शेयर्स खरीदे, बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, फिर ऐसा करके 5 बार दे मेड प्रॉफिट्स और मे बी लॉसेस। सो ह्यूज चर्निंग रेशो, ह्यूज, तो इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। पीयूष राज, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स होते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वो रिटर्न्स 2-3 तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर मैं आपको दूंगा CAGR का, बट यहाँ पे 3-4 तरह के रिटर्न्स रहते हैं, एब्सोल्यूट, पॉइंट टू पॉइंट, CAGR, XIR एंड रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। CAGR होता है ऑन एन एवरेज पिछले सालों में सब का मिला के कितना मिला, एब्सोल्यूट होता है आज आपने लगाए लास्ट टाइम से कितना ज़्यादा, एब्सोल्यूट एंड पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स आर द सेम थिंग। CAGR कि आपको हर साल कितना रिटर्न मिला है ऑन एन एवरेज, बिकॉज कई बार रिटर्न नीचे भी जाएगा, कई बार ऊपर भी जाएगा, बट ऑन एन एवरेज कितना की रिटर्न मिल जाता है। XIR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज यूज्ड फॉर SIP पार्ट ओनली। रोलिंग रिटर्न प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस साल कितना रिटर्न था, पिछले साल, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ना दे प्ले स्मार्ट। वाई, देखो आपके पास LIC वाले कई बार दे मस्ट हैव कम विजिटेड यू कि सर LIC की स्कीम ले लो, राइट। नो वाई दे वांट टू सेल यू स्कीम, वो बोलेंगे आपका पैसा डबल हो जाएगा। डबल होना मतलब दैट इज़ एब्सोल्यूट रिटर्न्स, कि आज आप पैसे लगाओगे पैसा डबल, बट दे डोंट टेल यू आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दैट इज़ एब्सोल्यूट रिटर्न। रोलिंग रिटर्न में क्या रहता है, आज कितना था, पिछले साल कितना है, उससे पिछले साल कितना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ना अपने बुरे रिटर्न्स नहीं बताते, दे ट्राई टू हाइड इट, सो वी नीड टू सी द रोलिंग रिटर्न्स ओवर हियर। आई होप यू आर विद मी एवरीबडी, डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग XIR एज वेल गाइज, अभी रिटर्न्स वाला कंसेप्ट आएगा, लोअर इज बेटर। सी गाइज, द थिंग इज दैट दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, दो मैंने पिछली क्लास में सोचा था आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कम्प्लीटली, बट इट टुक टाइम। आज मैं यही सोच के आया था कि आई विल कम्प्लीट इट, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा, बट स्टिल अभी एक और टॉपिक था, बट स्टिल इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 1 more class would be required for this, right? So we will be covering many topics in the coming class as well, because still ETFs are left, still hedge funds are left, right? Now coming back to this thing, exit loads मैंने बता दिया आपको, exit load varies, हर ये टर्म्स एंड कंडीशन हर म्यूचुअल फंड की अलग होती है। नाउ टैक्स सेविंग फंड्स, someone had asked this thing, टैक्स सेविंग फंड में ये जो एग्जिट लोड होता है ना, इट इज़ फॉर 3 years। लॉकिंग पीरियड, ELSS का जो लॉकिंग पीरियड होता है, एम्प्लॉय लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको बोलते हैं, और इसको टैक्स सेविंग फंड्स भी बोलते हैं, वहाँ पे जो लॉकिंग पीरियड है डैट इज़ फॉर 3 years गाइज। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर, राइट। नाउ यहाँ पे देखो मिनिमम लमसम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो गाइज, जस्ट 100 रुपये, फ्रॉम 100 रुपये कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड का मतलब होता है कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, बिकॉज दे आर क्लोज एंडेड फंड्स एज वेल। क्लोज एंडेड में होता है कि दे इन्वेस्ट मनी, राइट, एंड द मनी विल बी ब्लॉक्ड फॉर नेक्स्ट 5-10 years एंड देन इट विल बी रिडीम्ड, तो वो क्लोज एंडेड होता है, आपने एक बार लगा दिया देन यू कांट डू एनीथिंग। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ दिस, आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर।
नाउ सिंस इंसेप्शन कितना रिटर्न दिया है, 15% सारे म्यूचुअल फंड इक्विटी में दे ही देते हैं. इट कुड बी मोर देन डैट एज वेल, बट यू कैन कीप 15% एज सच. अब यहाँ पे CAGR का पूछा था, देखो CAGR इतना मिल ही जाता है, बट इट कुड बी हायर एज वेल. यहाँ पे देखो बेंचमार्क, किसने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन, आई फॉरगॉट द नेम. समवन हैड आस्क्ड मी क्वेश्चन बेंच. सी गाइस, क्या होता है, म्यूचुअल फंड को हमेशा कंपेयर किया जाता है. म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद समथिंग. इट कुड बी निफ्टी 50, इट कुड बी सम निफ्टी नेक्स्ट 100 कंपनीज. इट शुड बी लाइक डैट कि म्यूचुअल फंड हमेशा बेंचमार्क से ज़्यादा ही परफॉर्म करे, एंड वो करता भी है. म्यूचुअल फंड का जो मेन मकसद है बनने का, दैट इज़ ऑलवेज टू एक्सीड एंड बीट बेंचमार्क. आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो बाकी लोगों को पीछे छोड़ के. सिमिलरली म्यूचुअल फंड किसके साथ compete करता है, बेंचमार्क के साथ. हु डिसाइड्स दिस बेंचमार्क, म्यूचुअल फंड इटसेल्फ. जब म्यूचुअल फंड बनता है ना, तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू बीट दिस बेंचमार्क, इसको तो हम हरा के रहेंगे. सो दिस इज़ हाउ ऑल द म्यूचुअल फंड सेट अ बेंचमार्क. बेंचमार्क होता है जिसको अपने साथ वो कंपेयर करेंगे. सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज. यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, कैटेगरी. यहाँ पे देखा स्टेटस क्या है, म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड है. लॉन्च डेट शुड बी मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए म्यूचुअल फंड. मिनिमम इन्वेस्टमेंट और टॉपअप होता है, मतलब आप एक बार पहली बार इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर आप बाद में कितना मिनिमम डाल सकते हो, तो इट इज़ 100 रुपी. जस्ट फ्रॉम 100 रुपी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स गाइज, राइट. इसके पास टोटल एसेट्स है 68,000 करोड़ गाइज. इट इज़ ह्यूज मनी देखा जाए, राइट. इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100, निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज. बट यहाँ पे TRI लिखा है. व्हाट इज दिस TRI? Okay, okay, okay. Let's do one thing, guys. People have to leave. We will be continuing this session again. Means it may take one more session, guys. Means mutual fund is a quite vast topic. So we will be spending one more day on this, and we will meet again. Any doubts you have, you can ask. सो TRI का मतलब होता है जस्ट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट. ये टर्म यूज़ होती है. सो इसमें क्या किया जाता है कि आपने इसको ऐसा दो, इसको आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो कि आपको अगर शेयर्स, आपने कोई शेयर खरीदा फॉर एग्जांपल, उस शेयर के अगर हम डिविडेंड्स जो देते हैं वो भी फिर से री इन्वेस्ट कर लें, तो उन डिविडेंड्स को भी यूज़ करके प्लस कैपिटल गेन, ऑल द गेन्स, कितना रिटर्न आएगा मैक्स टू मैक्स, राइट. तो वो बेंचमार्क के लिए रखते हैं. दीज थिंग्स आर यूज्ड एज फॉर बेंचमार्क थिंग्स, राइट. कि बेंचमार्क को हराना है तो हम इसको डिविडेंड्स को भी ऐड करेंगे इसमें. Guys, I hope you're with me, everybody. Okay, guys, how was the class? And I hope you liked the session. If you have any doubts, feel free to ask. Actually, today was complete practical thing. थोड़ा सा रह गया and we are good to go. I hope you liked the class. See, stock research ki Ujjwal, we will be doing the equity research session again. It's a very long thing. We are going to do it again. And thank you everybody. Have a great day ahead. And let me turn off the, let me see you at least